जज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, one more command performance from the Home Minister, Mr. Amit Shah, over the J&K amendment bill. Absolutely fantastic. I mean, you can't fault him, and the statistics that he presented were absolutely fabulous. One of the most important things, of course, was that for the last 30 years, there were no cinema halls. All cinema halls in the valley had been shut down. They've opened only now. Isn't that amazing? Amazing. And look at the footfalls. And they're really doing things to see that, the entire activity comes back. Positive business activity, trade, commerce, literature, and all kinds of entertainment comes back to the valley in Jammu and Kashmir. Working very hard on that. और ये बात यहाँ पे ना जाने कितनी मर्तबा हो चुकी है पहले। मुझे कांग्रेस का समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। Do you want Article 370 to be restored? Is that what you want? अरे पूरा देश आज की तारीख में ना जाने कब से इंतजार कर रहा है कि आर्टिकल 370 रिपील होगा। आप चाह रहे हैं कि वापस आए? अगर आप चाह रहे हैं वापस आए तो भैया 2 सीट पे आ जाओगे, बोल रहा हूं, और वो भी बड़ी मुश्किल से। हो सकता है वो भी ना आए। I don't know what they want. आज जिस प्रकार से अमित शाह बोल रहा था कि ये पाकिस्तान occupied Kashmir is ours, is हमारा है, ये हमारा है. I mean that's what he's talking. But that's not a new position. It is. And look at the way they're getting more aggressive on that particular thing. First it was earlier, about 2 years back in the parliament, during one of the debates, he did say that ये भी हमारा है, Aksai Chin भी हमारा है, हर चीज। But today the aggressiveness in which he pitched that Pakistan occupied Kashmir हमारा है, and this particular bill, it talks about reservation for people coming from Pakistan occupied Kashmir also. Yes. Now that is something, one seat reserved for displaced persons from Pakistan occupied Kashmir. So that's so Pakistan occupied Kashmir हमारा है, justified. Actually, strictly between you and me, 2 seats always used to be reserved for POK in Kashmir Assembly. Okay. पुरानी बात है तो, but trust Mr. Amit Shah to take credit for everything, for everything, which is absolutely fine. Somebody has to take credit. I mean, but somebody has to take credit. I really want to know, what is the Congress planning to do? Isn't it enough that you've just lost Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh? All right, you won a spectacular victory in Telengana, which is absolutely fine. Wonderful, congratulations to you. Do you want to lose everything else? What's the matter with you guys? Anyway, we'll discuss politics and we will discuss Kashmir and everything else when we are joined by Mr. Arshad Azmi later. And of course our old friend Mr. Ganesh Khankar. And Mr. Ganesh Khankar, Pradeep ji, would be flying today because every one of his predictions has come true. And the other guy whose predictions came true is our own astrologer friend, Mr. Rajesh Hasija. Yes. Ah, wow, wonderful. I didn't believe him at that time, but he did say that. He said, come December, Mr. Rahul Gandhi is going to lose. That's what he said. Well, but the Congress believes that in the defeat also there is victory. 40% of the votes, they say, 40% vote share हमको लोगों ने vote किया. It's not that people have forgotten us. They have voted us. And we've got 10 lakhs votes more than the BJP. As I told you, when I just started off in journalism way back in 1982-83, Mr. L.K. Advani used to talk like that after every defeat. He used to come out with these statistics and say, hey, listen, हमारा vote share ऊपर बढ़ा है. I agree with you. अरे election तो हारे हो ना यार, vote share बढ़ा है तो कोई बात नहीं. आपके 4 करोड़ 90 लाख वोट आपको मिले हैं. उसके बनस्पत भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं बस. Let's be very clear. But they won. Because their votes are concentrated. We have first past the post system. We don't have vote share to decide seats. But anyway, we'll talk about that later. At the moment with us, we have one of the most enduring stars of Bollywood, one of the most enduring actresses of film and television. And right now, we are honored to have Deepshika Nagpal right here with us. Deepshika ji, namaskar. नमस्ते नमस्ते, कैसे सब आप? Absolutely fine, ma'am. Thank you very much. Meeting you after years. Thank you so much. Thank you very much for coming on the show. It's been a great pleasure. How do you manage to look exactly the same? Your voice is... Can you hear me now, ma'am? Now I can hear you. How do you manage to look exactly the same?
Last time I met can just you. say thanks to my Last genes. time met you was in 2011, 2012 when you came on our show. Yes. I still remember. There was Yes, yes. something to do. My film was releasing Ye Duriya. Yes, absolutely. Yes. I still remember that. Yeah, And you look exactly the same. Oh God. And you look the same too. Oh, me. That's all right. That is because I was 104 years old at that time. And after some time, you know, you stop aging. After the age of 100, they say you remain the same. So that's what happens. But you're really doing very well. You're really doing very well now. It's absolutely fabulous. Thank you. I mean, God has been kind. I mean, the way you started off, you started with KOYLA, BADSHAH, and so many other beautiful films, and then after that, you know, now television. So now you are on the OTT platform as well and on television, Yes. is that it? So could you tell us a bit more about it, please? At the moment with us, Deepshika Nagpal. In case you have any questions for her, please do send them in the comment section, and I'll try and ask her as many as possible. Nothing colourful here, please. No abusive language. We reserve the abusive language only for politicians. That I'll read out. Yes, ma'am. Please go ahead. Yeah, no, God has been kind. I think it's almost 30 years I'm in this industry. Dev Sahab has introduced me, and I think after that I've not looked back. I've done many films, many TV shows, produced, directed, singer, lot of things. And the latest I was shooting for Na Umr Ki Seema Ho. It comes on Hotstar with Iqbal Khan, and it was an amazing show. I finished 2 shows at a time, and right now I am chilling, enjoying holiday with my children. It's a December month, so that's all I can say. You have children. Yeah, You have children. my children. My son is 18, my daughter is 20. Adopted, of course, right? Even they tell me the same thing. Yeah, You my look daughter like, is. you look like a child yourself. Thank you so much. Yeah, but no, I have a Wonders daughter. never cease. This girl, I was very surprised. I didn't say all that at that time. You know, when we met on the show. Prior to that, of course, we had met in Sahara. But I think age is just a number. It all depends upon the way you look at life. And you've done so well for yourself, which is brilliant, absolutely brilliant. So how have you managed that? Could you tell us that, Deepshika? Honestly speaking, yeah, it is all teamwork between me and my children, and God has been really kind, and my audience, my producers, everyone. My Nana ji is from silent film, and Vittal Das Panchote, everybody knows. He gave me one tip कि जब आप घर से बाहर निकलो तो घर की प्रॉब्लम घर में छोड़ दो, और जब काम से बाहर निकलो तो काम की प्रॉब्लम काम पे छोड़ दो. So that is all I am being doing all these years. घर में आती हूँ, काम का टेंशन छोड़ देती हूँ, काम पे जाती हूँ, घर का टेंशन छोड़ देती हूँ. And yes, my biggest strength and my supportive pillars is to my children, and they understand me and I understand that, and that's how we just keep going on and on. And thanks to my audience, they keep loving me. Whatever I do, that's all I can say. And Deepshika, could you also tell us a bit about what is the next project coming up, which is your next film, which is your next television serial? What are you planning to do? Because when you do TV, आपके पास time नहीं होता है कि आप OTT या film के लिए time निकालो. So that's the purposely I've taken a break from TV for this month, 2-3 months, and I'm doing one OTT where I cannot leave. I'm doing 2 web series, and which is I'm not supposed to say. So yes, I'm looking forward and coming back. I want to come back to my films. I want to come back to film sets, and that is my whole idea right now. Brilliant. And singing is my passion, so I've just released one music album in Navratri, and I want to do one more song. So that is why I'm doing it. Wow, I didn't know that. I'm Pradeep, did you know that? Yeah, also with me, I only knew, Deepshika ji, that you are awarded the Limca Book of World Records. Your name is there in that, and not only that, the Asia Book 2011 for 9 departments of a film that you handle. That's amazing. I don't think anybody in the industry has done that. It's fantastic. I mean, the youth of today, the people of today, the young people who want to come to Bollywood will be inspired by even knowing about this. Kindly explain this. Yeah, so that's what I met you for that. There's a film called Ye Duriya, which I produced, directed. That is where I handled 9 departments in that film. And ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सोच समझ के किया था. It just happened to me. I just thought कि divorce is a taboo from lot of women, and film बहुत strong जरिया है जो लोगों के ऊपर impact करता है. So I said, let me just write the story about love after divorce. Is it a crime? This was in 2009, and अभी तो फिर भी थोड़ा modern हो गया है. So उस time पे जब मैंने story लिखी थी, I wanted somebody else to write, but because my dad was a writer, director, producer,
सो हमारे सामने जो स्क्रिप्ट आती है वो पूरी फुल कंप्लीट आती है. तो जब मैंने मेरे राइटर को सुनाया तो इस सेलिंग आपने तो स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर डायलॉग सब कुछ लिख दिया है, व्हाई डोंट यू डायरेक्ट इट. एंड आई वांटेड समबडी एल्स टू डायरेक्ट इट, बट यू नो फिल्म में अरे दीपशिका यू डू इट, वी आर देयर. बट मैंने ठान ली थी कि वही एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं नहीं सुनूंगी. तो आई डायरेक्टेड द फिल्म एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड Priyanka Chopra or Rani Mukherjee, but why will they work with a new director? So it landed up that I acted in that film and produced myself. So everything came on me, and only the God is being kind that I completed that, and that's how my name has gone in Limca Book of World Record. And this credit I give it to my direction team, which are my ADs. They secretly put this thing. वो लोग कब सेट पे आए, कब उन्होंने चेक किया, हमें नहीं पता था. बट येस दैट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट. एंड जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी तो critically lot of people, all the big critics has given me 2.5 star and 3 star, but I was like a pregnant with that film and I delivered and I was like, oh my god, अब आगे मैं कैसे कर पाऊंगी, I don't know. But that was hats off to everyone and I don't know how I did it, but I did it. No, taking up the challenge is a fantastic thing, because you said people went on putting something on a plate and you went on accepting it. I mean, you need to be, you need to have the grit and determination. Yes, I can do it. That spirit. That is what I'm calling. This spirit, it just came spontaneously, or because your grandpa was there, your father, they all from the industry, so that it came naturally to you. See, I'll give you a small example. जब हमारी housewife होती है, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अगर सर्वेंट नहीं आती तो खाना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, साफ भी करती है. ये हाल मेरा हो गया था. वो बचपन से वो देखती आ रही थी मैं प्रोडक्शन और डायरेक्शन कैसे करते हैं, मैं बिहाइंड द सीन. सो समवेयर इट वाज ऑन मी, एंड जब मेरे पे जब आ ही गया तो मैंने खत्म कर दिया. लाइक आई सेड आई हैव टू फिनिश दिस बिकॉज आई एम नॉट दैट बिग पर्सन वुड 5-6 साल तक वेट करूंगी. आई हैव गिवन माई सेल्फ 1 year का टाइम एंड आई हैव टू फिनिश दिस फिल्म एंड आई डिड दैट थिंग. That's all I can say. But Deepshika, the fact remains that this is all very well. I mean, congratulations are in order and all that you've done so well, so beautifully. But your struggle has been there. Yeah. I mean, people don't know about it, but you've really had to struggle. You've really had to fight for yourself. You've faced a lot of opposition. Yeah. Would you care to tell us a bit about Yeah, what are the things you have to face, please? See, when people talk about struggle, they think getting struggle in like into getting work and acting and all this thing. My struggle was not that. God is being kind that I've always got work. My struggle was more emotional struggle, that I've lost parents in a very young age. I was a mother in very young age and went through a divorce. So that time which I never wanted to leave, like I never wanted to become an actor. क्योंकि माँ बाप कभी कोई घर में होता ही नहीं था, तो आई यूज्ड टू से मैं मर जाऊंगी लेकिन एक्टिंग नहीं करूंगी. Only reason I didn't like my mother leaving me and working, which I never wanted to do it with my children. But the situation happened like that. I went through divorce, my parents were not there, and I was a single mother. So I had no choice but work. So leaving your child alone with caretakers and servants, it was a very big thing to do it as a mother and an actor. तो वो मेरे लिए बहुत ही वो था कि आप बच्चों को छोड़ के जा रहे हो और उसे समझा रहे हो. When your child is asking, Mama, why you are not there when all mothers are there? And I have to sit and talk to them कि your mom is working. आप decide कर लो आपके साथ वो birthday party में है या काम करे. And for that, my children was a big support system. They said, Mama, you work, we will do good. And they are very good in their studies and everything. So this whole emotional struggle was too much to handle. So, how long did this continue? Must have continued for a long time because you it were still very continued. busy at one I'm time. still single. It's like one marriage, then after 4-5 years, I thought, let me remarry again because people are saying, children are small. I again did that thing. My God, it was such a brave thing to do it. I thought it will work. And long time, I was just holding that marriage thinking, okay, first marriage broke up, now second bhi ho gaya, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी. But then I think peace of mind is very important for any individual. So that also I said, I just walked out of that marriage and I've gone through a depression. You name it, everything I've gone. And certain time you ask me this question because we don't realize what is happening to us. And I used to get the cramps in my stomach. मुझे नींद नहीं आती थी, मैं परेशान हो जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था. The only thing was keep me going was my 2 children, because if anything happens to me, who will look after them? And at the same time, I used to make them strong, like
I have done art of living, I have done access to consciousness, you name it and think, spiritual thing, I've gone through it because that's the only thing I could heal myself. And today I can say ki yes, I can't say 100% I'm healed, but yes, I've learned how to handle my emotions, my work and everything. And my children now, since they've grown up, so they also understand. So this was very, very difficult. I have taken psychiatrist help and they've told me the best thing, I used to recognize what is the issue and I used to work on solution. And Anjali Chabaria was my psychiatrist and I used to always ask her, okay, this is the problem. Can you just tell me what can I do? And she used to tell me, I've not taken any medicine, nothing. I did yoga, I did everything. And mentally, Wow. I was very strong. I was to always come over it, like I was to bounce our back. admiration for you has gone up by at least 100 times after hearing that. But Deepshika, there were no relatives? I mean, I'm sorry I'm asking you this because this Yeah. really interests me. कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था जिनको बच्चा नहीं था because मेरे मम्मी डैडी ने उस टाइम पे भाग के शादी की थी उस जमाने में, तो डैडी ने सबसे कट ऑफ कर दिया था. So yes, my chachas and everybody was, so they were in UP. And me, I don't have habit of asking help to anyone because that is my problem. My Masi and everybody is there, but they have their own life. They are not from film industry, and I don't want to go and run and cry. This has happened. Why should cry? Just face it. 1, 2, 3 days. What maximum 10 दिन problem. उसके बाद क्या? But then I had my house help and all these things. Unfortunately, I tell you, my closest friend also. When you are now, it's like a bad time. When you're a bad time, you attract wrong people in your life. They give you wrong advice. So I was kind of cut off from everyone and I became very isolated in my zone. My only focus was just work, look after my health, my children, make money and give them best. That's all I was doing. It like a focus, वो अर्जुन की आंख वाला हिसाब हो गया था. एंड किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं रहता है बिकॉज आपके क्लोज लोग ही आपके साथ सही नहीं करते हैं. सो बट दैट्स द बेस्ट थिंग that you are the one, you have your own. I used to read book, I used to go through all this spiritual thing. So what about now? अभी मुझे आदत हो गई. It's like और बच्चों को भी आदत होगी और बच्चे बड़े भी होंगे. बच्चों को भी आदत हो गई. और spiritually आपने कहा art of living and all yoga and spiritual people tend to go to spiritual and when they are depressed in the some bad times coming on. तो आपके लिए कोई spiritual inspiration, कोई spiritual guru जो आप follow करते थे? It allows you to take off all this tension and all these kind of problems and minds and so what was it? Yeah, I tell you, I don't follow any one person. I like, for example, Sadhguru ji. I love the way he talks. I love his opinion. I love his he conducts and his mentality. So when you're searching. So I was searching art of living. मैंने course किया. I've learned something. Then I did Buddhism. Then what changed me was access to consciousness. There is a course. It's more like a life coach. And I always give credit to my guru is Ashish Narayankar. He teaches this. And that access to consciousness course just changed my life. Just changed whole perspective towards the life. How you see it, it's changed. Like, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, whether it's Brahma Kumari's lectures or thing. So मैंने सबसे सीखा. I used to read books, all the saints and all the big gurus and all. So I can't say one particular, but yes, access has changed my life completely. And I think everybody should do that kind of course. Recently, my show got over. My son has gone to study abroad. That is the biggest achievement I got. And my daughter went to set him up. She's like mother to him and I'm like a father. And the minute they both went, I said, let me do my bucket list. I went to Adi Yoga. I did inner engineering. I'm still learning. I'm still doing it. It just helps me to handle situation in my life. Like, for example, तब बच्चे छोटे थे, तो उनकी problem अलग थी. So I couldn't cope up. Now my children are teenagers. So their problem is different. So I'm like, oh my God, all my life I'm just learning only. And then when I see the problem between my daughter, like it's a difference of opinion. I don't want to become like a crybaby. Oh, मैंने तो पूरी जिंदगी खत्म कर दी, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं. It was not like that. In fact, I started understanding them, what this new generation want, and I started coping up with them to get peace in my life. And there is a harmony in my life. So I think every parent should do that. They should be friends with their children instead of going to drama. In fact, from whatever you have said up till now,
I think your children must be helping you deal with your problems now, I think. Yeah, matlab, Isn't that right? 100%. My son is the biggest teacher. He's born on 5th September. He tells me, Salim, Mama, don't do this. Don't overthink. And I'm so glad because whatever courses I have done, I made them do. Always that fear, okay, what if something happens to me? Then who will look after them? So I made them so strong. I put them in boarding. जो मैं अभी कर रही हूँ मैंने उनको तभी किया, and they learn whatever they learn. So now, right now, they are my emotional strength. Like a lot of time I do something and I think and I overreact and I go emotional. My son and my daughter just stops me. Mama, we are there. Just don't worry about it. Wow. So isn't that lovely? I think the Isn't best that beautiful? thing. That is so beautiful. It's so beautiful, and I'm so grateful that my children are like that. And Deepshika, the other thing, sorry, Yes, sorry, Bill, Bill. you got one small thing. You see, the major problem that any young parent has, whether single or not, is you've got kids. Yeah. And especially in a job like yours, you don't have a job, right? Yeah. You are in the entertainment industry. What if the money stops? What happens Yeah. then? So how did you overcome that fear, and how did you manage to see that enough kept coming into the house so that the kids would never want for anything? How did you manage that? I have, thankfully, I've done a cost accountant. I'm a commerce student. So I've invested very well Isn't in she market. full of surprises now? So Yes. she's now also a cost accountant. Oh God, Yes, this I is like am. crazy, man. I feel completely illiterate. Yes, please go ahead. Thank you. Go ahead. So in my house, I was the only one. In young age, I paid income tax. I've taken a loans. I bought houses. I invested in properties. So I always knew that our profession is very unstable. You never know your health is doing. You get work. You don't get work. Maybe you don't want to work, sometimes. So I had that plan, investment, saving. But luckily, जैसे जैसे मैं बढ़ती गई ऐसा लग रहा था इंडस्ट्री चेंज होती गई कि your mother doesn't make any difference, you're single, you fit to the role, your commitment to your work, that's all matter today in the industry. So TV was a very, very hard job, like, traveling, working 12 hours. So I chose to do TV because it was a fixed job income. And वो मैंने इतना काम किया है, मतलब I can't tell you, 18, 19 hours I used to work, and I said, make most of it, Deepshika. And that is what I said, कि काम मिल रहा है, करते जाओ, आगे के आगे देखेंगी. तो ये इतने सालों से जो मैंने काम करके सेव किया, and that whatever the financially I'm independent. So God is being kind. I'm not scared about that. Now my children are only grown up, so they'll take over whatever they want to do. And then it's their responsibility anyway, how Yes. they live their life. But Deepshika, anybody from the film industry से और टेलीविजन इंडस्ट्री से कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी शख्सियत है जिसको आप थैंक करना चाहेंगी, who has stood by you? And Of course. My best friend, I always tell him, Ayub Khan, he's amazing person. मतलब we all are busy, but whenever I need, like जैसे मेरे बच्चों की कभी कुछ issue होते थे, and I didn't know how to handle it, I used to call Ayub because my children really respects him. We had long, he got married, he got children, my children and his children are same age. He used to come and talk with a lot of respect, and it's to make a lot of difference in their life. So I really want to thank him. And yes, I have a set of friends. Now I can say in this 5 years, who are not from the industry, but yes, very close friends who are like, one is a pilot, one is thing. But industry, I would definitely want to say Ayub Khan. And he's an amazing person. I'm so thankful, God, that he's my best friend. Deepshika, you talked about the spiritual, you were inclined, you like Sadhguru, you went for Art of Living, Sri Sri Ravi Shankar, and various other gurus. Like, were you motivated by anyone from the Bollywood? Some people get motivated by Rajesh Khanna or Amitabh Bachchan or, any female stars. Sometimes by their dialogues, Babu Mashai, Zindagi or Maut Upar Wale Ke, and that's become a way of life for you. Something that inspired you in Bollywood. Not exactly. Obviously, when I work, you want to work best of the thing. When I see somebody's performance, ऐसा लगता है, अरे, I would like to do this thing, I wish I could get this kind of a role. That kind of motivation I like. But I've never followed anybody, कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. So it's a learning process. पहले आप मधुबाला जी को देखते थे, अरे, I want to be like this. Then another actors come, then other actors come. All the train changes. So till today, I wish I can do that role. That's all I can say, but I'm not following anybody.
So which was the last role that you thought you should do, or you could do, or you wish you had done? Last role, I always wanted to do Madhu Balaji's half ticket wala comedy role because people think I'm glamorous. I do negative roles, positive role I've recently done, but comedy nobody's tapped my bunny. वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई ना. अभी recently कोई picture देखी हो जिसमें आपको लगा होगा यार ये रोल अगर मुझे मिल जाता तो. हाँ मैंने कल ही देखी एनिमल. I said मेरे को ऐसा रोल मिल जाता है साइको का मैं जरूर करूंगी वैसा रोल मतलब मेल रणबीर कपूर. Male Ranbir, female Ranbir. This girl is too good. Any favorite? Hey, hang on a minute. This is for all the directors out there, all the producers out there. Deepshika is your next person you have to cast for a psycho, absolutely nutty person Yes. who goes absolutely crazy on cinema. I will do fantastic. So do it. So and remember you heard it here first. And give us a commission when you cast. Done, दे दिया. I was saying, any kind of dialogue that has, from Bollywood that has hit you on the memory, everlasting, always. बहुत सारे हैं, but recent वही है. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है. हाय. ये सिर्फ माशाल्लाह स्क्रीन पर के असल में आपकी जो निजी जिंदगी है उसकी बात कर रही हैं आप. दोनों की बात कर रही हूँ. निजी जिंदगी में यही होता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बट इमोशनली बहुत वीक हूँ, तो बहुत डर लगता है किसी से बात करने के लिए इमोशनली कि is that person is seriously wanted to talk to me or he wants to talk to Deepshika or maybe he'll see my vulnerable side, maybe he'll take advantage. तो वो बहुत एक अजीब सा डर है जो नहीं निकल रहा है. and I think everybody is telling me high time you are single, you should meet somebody. I said meet somebody what, क्या मार्केट में थोड़ी ना कोई मिलता है कि तुम चले जाओ. You have to connect with somebody and that connection के लिए वो दिल दुख 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 होता रहता है. तो आप how do you manage to protect yourself? I don't know. I just pray. I don't. My children are supportive. They're telling Mama. Because I tell my children, you have a girlfriend, you have a boyfriend. Please bring them home. They should know. Your mother knows. That has to be a support. We three has to be together. Nobody can take advantage of us. So one day my son comes and tell me, Mama, you tell me. Why don't you bring your boyfriend at home? We have no problem. I was so touched by that thing, Wow. And he's So telling you you brought should up go your and kids meet. very well. Sorry. You brought up your kids really well. Yeah. They're so sweet. He's telling, Mama, do this thing, go here, wear this. But I don't know, maybe I'm very old school and आज की generation पता नहीं कहाँ चली गई. You see girls, they are not happy. कोई अच्छे लड़के नहीं है. तो मैं तो बहुत ही old school से आती हूँ. Commitment, loyalty, तो वो तो मुझे तो पता नहीं कब मिलेगा. Now she's fishing for compliments. Look at her. She looks so young, so gorgeous, so beautiful. She lights up our screen. I mean, you're the most glamorous person to hit our screen now in years. We only get ugly politicians, by the way. So that's not saying very much. But, full promotion is happening on my thing. But I'll tell you what. One second. Before we let you go, I would like to ask you another question. There is this thing that you were in, which got you a lot of popularity. A lot of people liked you, loved you. This Big Boss. Yes. What is it? What is the experience like? क्या होता है उसमें और क्या है? आपको जो तजुर्बा था कैसा लगा? आपका खुद का तजुर्बा कैसा था? वो जरा बताएं, please. I tell you something. मुझे Big Boss में नहीं जाना था. Because मुझे ऐसा लगता था कि why should I go and this I should leave. I will leave my children. Again my children, Mama go to Big Boss. It's a very popular show. And 3 साल से continuously मुझे offer आ रहा था लेकिन वो workout नहीं हो रहा था. And when Big Boss 8 में suddenly 3 days before I got a call, Deepshika, are you ready to go? And I was free. मतलब shooting wise I was not committed. When I went inside, मुझे लगा था oh my God लॉन्च होगा, मेरा परफॉर्मेंस होगा, सलमान से मिलूंगी, ये होगा. कुछ नहीं हुआ, सीधा मुझे एरोप्लेन में डाल दिया. So whole disaster first. The expectation was ये क्या हो गया? And मुझे वो secret society में डाल दिया. So already people started hating me there because she's the boss. But the अंदर जो experience था, मैं आपको एक कहूँगी जैसे हमारी दुनिया में ऊपर भगवान चला रहा है और अंदर आप सब गेम प्यादे हो, वैसे बिग बॉस के घर में बिग बॉस चला रहा है और सारे कंटेस्टेंट प्यादे हैं. आपको समझ में नहीं आता है कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर लोग क्या देख रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या समझ रहे हैं. So it was complete different opinion. So it was mind bending, so to speak. Wow, it was. Everybody should do it actually, but right now, so it's too much of chaos. When I came out,
मैं वहां गेम खेलने गई थी, मैं रिश्ते बनाने लग गई. And then I came out, I said, Dipshika, stop making emotional connects with people. Go and play as a game. So for me, it was an eye-opener. My life has changed. Big Boss has made me emotionally very, very strong. I must say this. So you must thank Salman Khan for it. 100%. Colors, Salman Khan, Big Boss, everybody. Wow. And what about Big Boss right now? Do you ever get to watch it? No? Yeah. Because since I said I'm on a holiday now, so I'm watching it. Oh my God, thank God हमारे साथ तो न्यू मतलब कॉमनर्स नहीं होते थे, तो थोड़ी हमारे एक्टरों की इज्जत रह जाती थी, because you know how somebody is pointing at you, it was very insulting, and now I'm seeing it's just chaos. मतलब एक अभी ना सब सीख के आ गए, एक मुद्दा उठाना है और उसके लिए लड़ना है, so आप टीवी पे दिखोगे, it's nice but it's I only watch Weekend Cover when Salman Khan comes, you know. Wow, lovely. Thank you so much, Deepshika. Thank you so much, Deepshika. Thank you so much, meeting you again. Thank you. It's Thank really you so lovely much. to talk to you, and I loved your film, Ye Duniya. It was so lovely. Oh God, it was really and truly fantastic. I still remember I met this gentleman on the plane who actually told me about it. Yeah. Yeah, there was this doctor on the plane who was a friend of yours who told me about it, and then after that we connected, and we carried out an entire campaign about divorced people. How women who are divorcees are looked at in a manner as if they are aliens from another planet. Yes. At that time. I want to still share know that. this. Maybe my film was not box office में hit था, but so many people got married after my film. I got so many emails, and I think my जो purpose था वो हो गया. And I But really it is a request. fantastic film. I'm waiting for your next directorial venture, which will be as socially relevant as Ye Duniya. I hope you will not disappoint us. Thank you so much. Sending Thank a you message so is the ultimate purpose of films, and I think you achieved Thank that. you very much. Great Thank pleasure you. meeting you. And And keep up the same. great looks. Oh God, I feel so jealous of this girl. But I was just kidding. Very, very proud of you. Very proud of you. Bye-bye. Keep it up. Keep it up. Thank you very much. Thank you. Bye. Namaskar. Namaskar. Bye. Thank you. Well, that was nice. Now and then maybe we should talk to people like that. Exactly, sir. Makes me feel 134 years old, which is fine. Right, let's stick to politics, which is what we are most comfortable with. और अभी कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है प्रदीप जी, भाई कांग्रेस ने तो तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी में तो अभी केओस चल रहा है, कौन कहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री तेलंगाना का तैयार भी हो गया बना भी दिया और कल बन भी रहा है। और कल शपथ ग्रहण भी है, रेवंत रेड्डी साहब बन रहे हैं। Yes. तो बीजेपी तो डिसिप्लिन पार्टी है, वहाँ तो क्या हो रहा है, मतलब आप पूछते हैं, अरशद आदमी साहब से पूछते हैं। अरशद आदमी साहब नमस्कार। नमस्कार। अरशद आदमी साहब, तो तेलंगाना में तो कल शपथ ग्रहण भी है, रेवंत रेड्डी साहब तो कह कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में तो झगड़ा चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ मालूम नहीं है कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ मालूम नहीं है, तो वो तो बड़ी डिसिप्लिन कार्डर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में झगड़ा होगा, कांग्रेस में तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरशद आदमी साहब जरा बताएं इसके बारे में। देखिए, कांग्रेस में झगड़ा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये बात तेलंगाना में तय थी, नेतृत्व किया था उन्होंने रेवंत रेड्डी जी ने, तो ये बात तकरीबन तय थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री होंगे। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहां पर झगड़ा इसलिए भी हो रहा है कि देखिए, पहले दिन से मोदी जी ये चाह रहे थे कि ये तीनों जो प्रदेश हैं इसमें ये कोशिश की जाए कि उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया। पर हकीकत ये है कि शुरुआत में कोशिश तो बहुत की भारतीय जनता पार्टी ने, पर आखिर में जब चुनाव आया तो मजबूरन उन्हें शिवराज सिंह चौहान को भी उस चुनाव में वो अहमियत देनी पड़ी, और वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी वो अहमियत देनी पड़ी जो उन दोनों की अहमियत थी उस स्टेट में। तो अब ये हो गया कि चुनाव तो जीत गए, और जो देश का जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है वो चिल्ला कर उसका सारा श्रेय जो है वो मोदी जी को देने के लिए एकदम चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पर हकीकत ये है कि वहाँ जो कुछ भी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की वो उनके वहाँ का जो नेतृत्व था, वसुंधरा राजे सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह, इन लोगों की ही वजह से लोग उनके करीब आ पाए। अब ये इसलिए है कि अब चूंकि गुजरात में और दूसरी जगहों पर, खास तौर से गुजरात में जिस तरह से मोदी जी ने किया था कि पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी थी, वो चाहते हैं उसी तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए
वो चाहते हैं उसी तरह का प्रयास जो है वो इन स्टेटों में भी किया जाए, लेकिन वहां की लोकल लीडरशिप मोदी जी के बराबर की है, और बल्कि काफी नेता जो इनसे सीनियर भी हैं। अगर 12 साल के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो 18 साल या 16 साल के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, तो शिवराज सिंह चौहान उससे सीनियर पड़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव तो खैर हो गए हैं, निर्णय भी आ गए, परिणाम भी आ गए, इसका कोई महत्व होता नहीं है, वैसे इसका कोई महत्व है नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने ये बात भी कही है, विश्लेषण ये किया है, और ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में इसमें कोई नहीं है। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें से कोई ये शख्स नहीं है। ये सब लोग यूट्यूब पे हैं, ये सब लोग वो हैं जो पहले एक जमाने में इन सब चैनल में हुआ करते थे, हम लोगों की तरह हुआ करते। हाँ, आज हम लोग कुछ और बोल रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, प्रदीप जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि यार एग्जिट पोल है। देखिए साहब, ओपिनियन पोल के बारे में मैं समझ सकता हूँ। ओपिनियन पोल क्या होता है, लोगों का आप ओपिनियन लेते हैं, उनका विचार लेते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है कि किसको आपने वोट दिया वो आप पूछ रहे हैं, अच्छा भाई आप अंदर थे, किसको वोट दिया ये बताओ। अब एग्जिट पोल में इतना फर्क कैसे हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, जो 6 चैनल हैं उसमें से 5 चैनल ये दिखा रहे थे, बल्कि 4 चैनल ये दिखा रहे थे, सॉरी 4, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी। 2 चैनल ये दिखा रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, और 1 चैनल ये दिखा रहा था कि बीजेपी को 162 सीट आएंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं, जो बाकी 4 एजेंसियां थीं उनको वो लोग क्यों नहीं मिले जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हैं और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। और राजस्थान में भी ऐसा, उन लोगों को वो लोग क्यों नहीं मिले जो कांग्रेस से नाराज थे। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। तो ये बताएं अरशद आजमी साहब, ये जरा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझको, आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए ऐसा है कि ये बात समझने की कोशिश तो पूरा देश कर रहा है। पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चा है कि वो राज्य, खास तौर से जिस तरह की जीत, मान लीजिए राजस्थान में ये होता है कि वहां ये रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो चलिए 1 मिनट के लिए वहां का मान लेते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में जिस तरह एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, देश में रहने वाले सभी लोगों को, बहुत सारे आज सोशल मीडिया का और इतना तरक्की का दौर है, तो हर पूरे देश की खबरें पूरे देश में घूमती रहती हैं। जिस तरह के हालात थे मध्य प्रदेश में, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस तरह के बड़े बड़े वेपम से लेके पटवारी भर्ती तक के जब बड़े बड़े घोटाले थे, जितने आरोप लग रहे थे, जिस तरह की महंगाई वहां पर खास तौर से मध्य प्रदेश में थी, जितनी बेरोजगारी मध्य प्रदेश में थी। और दूसरी बात ये देखिए कि इलेक्शन के दौरान भी आपने देखा, जो नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो वहां एमएलए लड़ने के लिए भेजे गए थे, उनके लड़के पर इलेक्शन के दौरान 10,000 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा, लेकिन उसके बावजूद वो कंफर्टेबली जीत गए। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन पर वो किसी महादेव ऐप वाले ने एक बात कहा, वो इलेक्शन के बाद पलट भी गया। अब मीडिया बता रही है कि करप्शन की वजह से वो हार गए। स्ट्रांग रूम जो है, स्ट्रांग रूम खुलने वाला था 3 बजे और सारे लोगों की मौजूदगी में खुलने वाला था, वो खुल गया 12 बजे। अधिकारी ने कह दिया साहब के गलती हो गई। तेलंगाना में डीजीपी चले गए रेवंत रेड्डी को थोड़ा सा पहले मुबारकबाद देने, इलेक्शन कमीशन ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन वही नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का खुलेआम रिश्वत लेता रहा, पैसे लेता रहा। न ईडी गई, न सीबीआई गई, न कोई गया। तो ये सारी बातें लोगों के दिल में शंका पैदा करती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह का काम कर रहा है पूरे देश में। आप देख रहे हैं इलेक्शन के दौरान कि इलेक्शन के ऐन एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है वो किसानों के खाते में पैसे डाल देते हैं। क्या ये आचार संहिता में इसका उल्लंघन नहीं हो रहा था? उसके बाद जो एग्जिट पोल की जो आपने बात की, देखिए एग्जिट पोल तो वही है ना जो आम लोगों से मिलकर जो लोग मालूमात लेते हैं। तो सारे के सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, यानी कि वहां पे बहुत अच्छा माहौल था और शिवराज सिंह चौहान की उसमें जो है वो एकदम विकास की गंगा बह रही थी और लोग बहुत खुश थे और लोगों ने वोट डाल दिया। अरे भाई, इनकी अपनी पार्टी के खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें मंच पर बैठाने को तैयार नहीं थे, खुद उनका नाम लेने को तैयार नहीं थे। उनका टिकट डिक्लेयर होता है तो पहली सूची में मुख्यमंत्री का टिकट नहीं आता क्या, ताकि लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे।
फिर 162 की जीत, और वो भी एक चैनल निकल के आता है आखिरी मोमेंट पे धमाका कर देता है कि इनको 160 सीटें मिलेंगी और साहब उतनी मिलती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। देखिए, लोगों के, देश के लोगों के दिमाग में इस बात की शंका आ चुकी है कि ये कहीं ना कहीं मशीन का मैनेजमेंट किया जा रहा है, वरना इतनी पिछले साल इससे अच्छी हालत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो नेक टू नेक फाइट हुई, दोनों को बराबरी की सीटें मिली, 2-5 सीटें कम ज्यादा मिली। इस साल शिवराज सिंह चौहान को खुद भारतीय जनता पार्टी कबूल करने को तैयार नहीं थी और उन्होंने ऐतिहासिक सीटें जीत ली। तो ये सवाल देश के दरमियान खड़ा है। साहब, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, इसमें एक और छोटी सी चीज है, छोटी सी, हो सकता है कि इसका कुछ मतलब ना हो सकता है, अब अगर है तो है, लेकिन अब तो परिणाम आ चुके हैं, क्या कर सकते हैं। प्रदीप जी, जैसे अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे शो शुरू होने के पहले कि साहब जब पोस्टल बैलेट खोले गए, पोस्टल बैलेट मध्य प्रदेश, तब कांग्रेस आगे थी सर, 199 सीटों में कांग्रेस आगे थी, आगे थे बिल्कुल। जैसे ईवीएम के वोट काउंट किए गए तो माशाल्लाह कोई और ही सूरत, मतलब तो लगता नहीं आपको अरशद आदमी साहब के जितनी भी गैर भारतीय जनता पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी पार्टी जितनी भी हैं देश में, उन सबको मिलकर के इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, या जो भी करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते हैं, कि भाई आप पेपर बैलेट पे वापस जाइए, पेपर बैलेट पे वापस जाइए, बिल्कुल ये चुनाव जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि असल में धोखा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा लेकिन जब शंका पैदा हो जाती है तो शंका को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आखिरकार जापान ने ईवीएम शुरू किया और फिर बंद कर दिया, जर्मनी ने शुरू किया, बंद कर दिया, यूएसए ने शुरू किया, बंद कर दिया। आज की तारीख में दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी बाय द वे, इंक्लूडिंग यूके, वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता सर। उज्जैन की एक सीट है, उसपे वहां के उज्जैन की सीट के बारे में वहां के एक नेता ने 3 दिन पहले फेसबुक पर एक आंकड़ा अपलोड किया कि उज्जैन की सीट पर इतने इतने वोट इस उम्मीदवार को मिलेंगे। आप यकीन कीजिए 100-200 के फर्क पे एग्जैक्टली उतने ही वोट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार को मिले। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें वहां पे इस वक्त पूरे देश में इसको लेकर घूम रही हैं। देखिए, बात यह है कि जैसे आपने कहा कि भाई ये एग्जिट पोल और जिस तरह की, देखिए इतने लोग तो कम से कम नासमझ नहीं है देश के लोग, भाग जाते हैं कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, किसने कितना काम किया है, किसकी किस तरह का व्यवहार रहा है लोगों के साथ। ये वही मध्य प्रदेश है ना, जहां अभी कुछ दिन पहले एक दलित समुदाय को बैठाकर उस पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पेशाब कर रहा था। जी वही है, तो वही जगह है। दे दिया साहब सब लोगों ने वोट। वेपम घोटाले में न जाने कितने लोगों के नाम आए, जब नाम आए उसके एक आध हफ्ते के बाद वो तमाम लोग मार दिए गए। इसी मध्य प्रदेश में वो तमाम चीजें भी हुई, लेकिन लोगों ने फिर भी वोट दे दिया, आदिवासी भी वोट दे दिए, ओबीसी ने भी वोट दे दिया, सबका हर किसी। आप देखोगे किस प्रकार से डाइसेक्शन करोगे कि मध्य प्रदेश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से सेंट्रल मिनिस्टर्स को लोकल इलेक्शंस लड़वा दिया। आज वो लोग इस्तीफा भी दिए सेंट्रल अपने एमपी के, और एमपीज को वहां पर लड़ा है, असेंबली में लड़ा है। तो तरह तरह के चेंजेस उन्होंने कर। शिवराज, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी को पहले उन्होंने बढ़ाया नहीं है, नाम ले लिए, तोमर जी, जो प्रहलाद पटेल हो गए, विजय वर्गीय हो गए, इनको अंदर घुसा दिया और चेंज इन स्ट्रेटजीज किए। मगर मोदी जी का बात करना कि हैट्रिक, ये हैट्रिक हो गया हमारा, और हैट्रिक 2024 में भी होगा। 2024 में भी मोदी जी बोल रहे हैं कि हैट्रिक हो जाएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका कहना है पहले भी देश का विभाजन किया था 1947 ने, 1947 से अभी पहले 2 टुकड़ा कर दिया, और अभी वही परंपरा को फॉलो करते हुए नॉर्थ और साउथ के डिवाइड के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ बीजेपी, साउथ कांग्रेस, कैसे आप कहोगे जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया है? देखिए साहब, मैं तो जैसे ये सवाल पूरे देश में घूम रहा है कि अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसकी कोई बात ही नहीं, इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो संस्था है इलेक्शन कमीशन, जो संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है, अभी इस वक्त पूरी तरीके से वो कैप्चर की जा चुकी है। तो अगर साउथ, और बात नॉर्थ की नहीं है, नॉर्थ में भी 40% वोट जो है
अभी जो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन इलाकों में भी, इन स्टेटों में भी कांग्रेस को 40% वोट तकरीबन मिले हैं। कांग्रेस के वोट कम नहीं हुए कहीं पे भी। आप तीनों स्टेटों में देख लेंगे अगर, तो थोड़ा सा कम ज्यादा पॉइंट इधर और पॉइंट उधर को लेके तकरीबन कांग्रेस ने उतने ही वोट हासिल किए जितने 2018 में हासिल किए थे। तो मतलब कांग्रेस अपनी पोजीशन पे उसी तरह बरकरार है जैसे पहले बरकरार थी। हाँ, इसमें एक चीज ये हुई कि जो दूसरी इलाकाई पार्टियां थी उनके वोट परसेंटेज कम हो गए। उनके वोट जो थे वो किस बुनियाद पर अब वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो तमाम इलाकाई पार्टियां हैं और जो जात की बुनियाद पर वो राजनीति करती हैं, आदिवासी होगी, दलित समाज हो गया, इन लोगों की बुनियाद पर करती है। और सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं समुदाय के साथ किया था। और दूसरा यह है कि इन समुदाय के साथ अत्याचार भी किया और इनका वोट भी ले लिया। हैट्रिक होने वाली जो बात है, अगर इस तरह का चुनाव होगा, इस तरह से मैनेजमेंट करके चुनाव जीते जाएंगे तो हैट्रिक क्या, मुझे लगता है ये कई बरसों तक इसी तरह से ये अपना चलता रहेगा। इसमें फर्क क्या आएगा? मैं आप और जो नॉर्थ और ये इसकी बात है, देखिए आज जो कांग्रेस वहां आ रही है, ठीक है, सीटों के उसमें काफी अंतर आ गया, लेकिन और परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आया। मिजोरम में आप देख लीजिए, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिला है, लेकिन उसकी एक ही सीट आई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 या 5% वोट मिला, 2 सीट आ गई। तो ये थोड़ा सा वो होता है, लेकिन इससे ज्यादा लोकप्रिय वो है। तो ये इतना कोई, देखिए लोग चिल्ला रहे हैं और गोदी मीडिया जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा चिल्ला रहा है कि खत्म हो गया, अब 2024 में रास्ता साफ हो गया। साहब, कर्नाटक में जो है 25 सीटें कुछ थी, जहां वहां कर्नाटक में सिर्फ एक सीट भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। आप अगर करेक्ट एक सीट है वहां पर, आज वहां पर 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कर्नाटक में जो चेंज आया, जो माहौल बदला है, तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई, तमाम वादे कांग्रेस पार्टी ने वहां भी निभा दिए, वहां पर भी 4 सीटें हैं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें हैं और 13 सीटें जो वो है उनके पास है, केसीआर के पास जी। साहब, ये इन तीनों इलाकों में जिस तरह का चेंज आया है, भारतीय जनता पार्टी 25 और 4 29 और 29 और 4 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वो है। जैसा चेंज आया है साउथ में, ये 33 सीटों पर करारी हार होने का पूरे चांसेस हैं वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें रिटेन नहीं कर पाएंगी। मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश में अगर आप विधानसभा के जो वोट ये आए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, अगर इन जिन विधानसभाओं में जिस तरीके से कांग्रेस को वोट मिला है, कम से कम 20 से 25 सीटें कांग्रेस को यहां आसानी जीत हासिल हो जाएगी। तो 50 सीटों के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इन्हीं इलाकों में हराने जा रही है। तो कहां से सांप की हैट्रिक होगी? आजमी साहब, मेन चीज आपको क्या लगता है, जो हिंदुत्व का जो बार बार मोदी साहब, अमित शाह जी और जेपी नड्डा हर मंच पे राम मंदिर का याद दिला देना मध्य प्रदेश में, और हर मंच पर यह बोलना कि 70 साल से कांग्रेस ने लोगों को राम मंदिर से दूर रखा, वंचित, राम मंदिर के खिलाफ काम किया, और ये मोदी साहब है कि 500 साल के बाद, 550 साल के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण में बैठा है, और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे थे और अलग अलग मंदिर के बात करते थे, अयोध्या, अभी कृष्ण जन्मभूमि। राजस्थान में जरा आपने दोनों का विलट करते थे, राजस्थान में हर मंच पे जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी कन्हैया लाल के मर्डर का केस बात करते थे। अशोक गहलोत जिस प्रकार से स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाया, अशोक गहलोत जिस प्रकार से 18 महीना से स्पेशल कोर्ट नहीं होने की वजह से एनआईए कन्हैया लाल को जस्टिस नहीं दे पाए, और पीएफआई को जिस प्रकार से छूट दे दिया, और पीएफआई को सरकार का सपोर्ट था, पुलिस बंदोबस्त के साथ उनकी रैली चलती थी। तो ये सब क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में उन्होंने बो दिया कि हिंदुत्व एक एजेंडा है, हिंदुत्व, और इसके सहारे बीजेपी जीते दोनों जगह, मध्य प्रदेश और राजस्थान? नहीं, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म का जो प्रोपेगेंडा गलत तरीके से करती है, उसका फायदा तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे सभी दल हों,
उन्हें इस बात पर मंथन तो करना पड़ेगा कि ये जो गलत तरीके से जो धर्म का प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन उसका पिट्ठू बन के पीछे पीछे घूमता है, कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लेता, तो इसके ऊपर तो लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि धर्म का गलत तरीके से प्रचार करके लोगों को भड़काना ये देश हित में नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो कन्हैया लाल की आप बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने वहां पे प्रोपेगेंडा किया राजस्थान में कि कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिला, हजारों लोग साहब इंसाफ के लिए अभी भी कतारों में खड़े अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। गौरी लंकेश को इंसाफ मिला क्या? गौरी लंकेश को जिस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाती थी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती थी। सुबोध कुमार, वो इंस्पेक्टर जो वहां उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, सुबोध कुमार इंस्पेक्टर थे जो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो सुबोध कुमार को भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे साथी दलों ने जिस तरह कुचल कर पीट कर मार डाला था, उस सुबोध कुमार को इंसाफ मिला क्या? ये भी तो हिंदू ही थे ना, सुबोध कुमार भी तो हिंदू थे। तो ये देखिए, प्रोपेगेंडा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान करती है, एक बड़ा ही खतरनाक बात है। इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और धर्म जो है देखिए, वो जाति आस्था का, जाति अपना एक पर्सनल वो है, उसका जिस तरह से प्रचार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आने वाले वक्त में तो मुझे नहीं लगता ये देश कहां चला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वोट किया है इन 3-4 स्टेटों में, आप अगर देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये इस बार जो नाइंसाफ, जो बेईमानी हुई है इन तीनों स्टेटों में, जिस तरह से लोग, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, लोग इस बात को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो धर्म को अपना वो समझते हुए अपने धर्म को निभाने के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा कि एक भ्रष्ट और तानाशाह सरकार अगर ये देश में रही तो आने वाले वक्त में इस देश का जो भी ताना बाना है वो बिखर जाएगा। अरशद आदमी साहब, यहाँ पर सिर्फ आप नहीं बोल रहे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और तो और छोड़िए, ज्यादातर मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी भी जो हैं, जो ज्यादातर कभी बीजेपी के खिलाफ बोलती नहीं, उन्होंने लिखा है कल लिखा है कि ये जो 3 स्टेट में जो चुनावी नतीजे आए हैं ये गले से नहीं उतर रहे, मायावती ने लिखा है। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है, बल्कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो बड़े सहमे तरीके से, बड़े आराम से कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कोई बोलता है कि यार जब तुम हारते हो तो तुम ईवीएम का नाम लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। एक दिग्विजय सिंह साहब ने बोला तो उनकी बड़ी खिल्ली उड़ गई हर जगह पे, लेकिन मायावती जी का तो कुछ था नहीं वहां पे। मायावती जी ने खुद बोला है कि ये कैसे हो गया, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहती हैं कि भाई ग्राउंड पे जो लोग थे, जितने भी लोग थे, पिछले 6 महीने से कुछ और रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये कैसे हो गया? ये क्या है कि किसी को समझ में नहीं आया अभी तक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हो सकता है बीजेपी के पास कोई मैजिक फार्मूला हो, जादुई फार्मूला कोई हो जो किसी को समझ ना आ रहा हो, शायद लोगों को बाद में समझ आएगा। जी बताएं। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर इतना ही मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर लोगों के दरमियान इतना ही अच्छा माहौल था, तो फिर वो शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से बेइज्जत करके मंच से उतारना, उनका नाम नहीं लेना, वसुंधरा राजे सिंधिया को कैंपेन में आने नहीं देना और उनका स्टार प्रचारकों में नाम नहीं डालना, इसकी क्या जरूरत पड़ रही थी? क्यों आपने, जब मध्य प्रदेश का सारा माहौल अच्छा था, तो क्यों आपने अपने 7 मंत्रियों को या 7 लोकसभा एमपीज को जो है वहां पे चुनाव के मैदान में उतारा? जब स्टेट बॉडी इतना अच्छा काम कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का जो पार्टी का जो वो है वो इतना अच्छा काम कर रहा था, तो फिर आपने एमपीज उतार दिए और अपने जो चेहरे थे उनको बदलने की कोशिश की, क्यों की आखिर? और मैंने कहा ना कि देश में देखिए ये बात आम तौर से थी लोगों में कि भले ही भारतीय जनता पार्टी आसानी से ना हार जाए या कांग्रेस आसानी से न जीत पाए, लेकिन फाइट तो होगी। पर रिजल्ट क्या आया? फाइट ही नहीं आई। सी वोटर और दूसरे बेचारे जो वो लोग थे, मुझे याद आता है कि कोई मामला था ऐसे ही, जीएसटी ना लागू करने का या नोटबंदी का कोई एक मामला था, जो तमाम गोदी मीडिया के जो चैनल्स थे जो सरकार की चाटुकारिता करते रहते हैं, तो वो रिपब्लिक भारत, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो जो उसके ये हैं गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी ने वो खबर जो है वो सबसे पहले अपने चैनल पे दे दी। तो रजत शर्मा नाराज हो गए कि भाई उनको खबर दे दी, हमको नहीं दी, हम बता ही नहीं पाए कि देश में नोटबंदी हो रही है, जीएसटी हो रही है। तो इसी तरह से इस बार भी हुआ
कि एक दो चाणक्य और जो दूसरे लोग थे, एक दो लोग थे, उनको सरकार ने बुलाकर धीरे से बताया कि ये आंकड़े आपको उस पे दिखाने हैं न्यूज पे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देखिए पूरे सोशल मीडिया पे यही बातें गश्त कर रही हैं, यही बातें चर्चा में हैं कि उनको पहले बुलाया। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज अमित शाह ने पेश किया पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेहरू जी ने गलती किया है। तो आपको नहीं लग रहा है नया इलेक्शन स्ट्रेटेजी और कैंपेन शुरू हो गया 2024 का? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, नेहरू जी ने गलती किया है, नेहरू जी की वजह से सीज फायर 3 दिन के बाद करते तो पीओके हमारे पास होता, यूएन में क्यों चले गए? एक कैंपेन चला, क्या आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, मैं समझता हूं अमित शाह भले देश के ये बन गए हों, गृह मंत्री बन गए हों, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और बहुत सारी बातें वो ऐसे ही बोल जाते हैं। यही अमित शाह अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि देश में रोज एक आईआईटी और एक आईआईएम बन रहा है, यही साहब बोल रहे थे। तो उनके ज्ञान का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। देखिए क्या है, सिर्फ ये जो लोग हैं ना, ये अपनी सत्ता का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गलत जानकारियां दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो चुनाव कांग्रेस हारी है, उसकी और एक बहुत बड़ी वजह है जो बहुत कम लोगों के दरमियान घूम रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं छोटी सी, फिर मैं उस मुद्दे पर, नेहरू जी के मुद्दे पर भी लौट आऊंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अगर आप पता लगाएंगे तो कम से कम 300-350 लोग ऐसे हैं, तीनों स्टेटों में मिला के अलग अलग 300 लोग जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो पूरी तरह से सक्रिय होकर कांग्रेस की मदद कर रहे थे। ईडी, सीबीआई और लोकल पुलिस के जरिए उन्हें अरेस्ट करके उनके जेल के सलाखों में भेज दिया गया। ईडी से भी लड़े, सीबीआई से भी लड़े, इनकम टैक्स से भी लड़े, इलेक्शन कमीशन से भी लड़े, लोकल पुलिस से भी लड़े और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े और आरएसएस से भी लड़े। इतने सारे लोगों से लड़ाई थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद देखिए नतीजा कोई इतना खराब नहीं आया, फिर भी 40% वोट कांग्रेस ने सब जगह ले लिया। रहा बात इसका, तो देखिए एक बहुत लंबी बहस है वो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। भाई आपको किसने रोका है? 10 साल होने जा रहे हैं ना आपको। आपने कितने प्रयास किए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए? अरे भाई प्रधानमंत्री जी तो नवाज शरीफ के घर बगैर सिक्योरिटी को खबर दिए हुए बिरयानी खाने चले गए, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तब तो वहां जाकर प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं किया कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें दे दीजिए, नेहरू जी से गलती हुई थी, अब वो गलती को हम सुधार लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इलेक्शन आया पाकिस्तान आ जाएगा, इलेक्शन आया तो धर्म आ जाएगा, हिंदू मुसलमान आ जाएगा। अरे भाई मुद्दे पे लड़के देखिए ना, आपने इतना विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब इतने सारे नारे आपने दे रखे हैं और इतना सब कुछ आपने किया है, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? कराइए ना। मैं क्या बोलता हूं साहब, एक चीज मैं चैलेंज करता हूं। वो तो बहुत बड़े आदमी, मैं छोटा सा आदमी चैलेंज करता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है ना, मध्य प्रदेश की 2-4 सीटों पर जहां चुनाव हो चुका है, जहां कांग्रेस हारी है, वहां पर आप बैलेट पेपर से चुनाव करके दोबारा एक टेस्ट की तौर से देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस हारी है, वो उन सीटों पर बैलेट पेपर से भी कांग्रेस हार जाती है, तो दिग्विजय सिंह से कहा जाएगा कि भाई आप माफी मांग लीजिए, आपने गलत कहा था, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य, अपनी लोकप्रियता के ऊपर जीत रही है, आप खामोखा इल्जाम लगा रहे हैं। तो आज 50 साल 70 साल पहले की बातों का जो इतिहास है, ये नई पीढ़ी है। ये 70 साल पहले आज की पीढ़ी इस देश में नहीं थी। वो तमाम लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी, जिन्होंने आजादी की सुबह को देखा था, वो अब दुनिया से रुखसत हो चुके। उस वक्त क्या हुआ था भाई? उस वक्त जो भी गलत हुआ था, अगर आप गलत कहते हैं तो आप उसको सही करिए ना। वो नेहरू जी थे जिसने इस देश को इसके पैरों पर खड़ा होना सिखाया, जिस पर आकर आज आप दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, जिसमें आज आप दुनिया में डंका बजा चिल्ला रहे हैं। उसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में रखी थी। श्री अमित शाह जी को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। राइट कहने का मतलब ये हुआ हर्षद सिंह साहब कि जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, सबको मिल करके बैलेट पेपर के लिए कैंपेन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए किसी भी तरीके से, ताकि 100% ये सारी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। राइट हर्षद साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार। थैंक यू।
Well, Mr. Amit Shah says POK is ours, but So, what I'm trying to understand 1952. is there some new strategy in place for 2024? Ayodhya. Sir, I don't know what is the matter with these Congress fellows. 1952 का जो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है आफ्टर द इलेक्शंस, उसमें भी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज आवर्स. 1963 में 1962 साइनो इंडियन वॉर के बाद, चाइनीज वॉर के बाद, there is a unanimous resolution passed by Parliament that the government of India will make every effort to take back all the territories which have been lost to Pakistan and to China. That because they're ours. हमने तो शुरू से कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है. और तो और छोड़िए, कश्मीर असेंबली में 2 सीट जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए अभी भी खाली रखी जाती हैं. तो मतलब And Mr. Amit Shah is announcing it. Okay, we have kept one for Yes. people from displaced persons from Pakistan occupied So Kashmir. that is 2 plus 1. Now it will be 3. Wonderful. But anyway, that assembly does not exist. So because it's not a state. Right now it's a union territory. आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर is a union territory. It's not a state. The promise is there कि बहुत जल्दी वापस स्टेट बन जाएगा. उम्मीद करते हैं होगा. But the fact remains, to the victor go all the spoils. The fact remains, the BJP is won. How they won, in what way they won, they have won. That's it. That's all that matters. G. And now, Pradeep ji, we have a rather disturbing issue. Yes, sir. Yes. एक बड़ा डिस्टर्बिंग सा इशू है साहब. बिल्कुल, वो बिल्कुल. मतलब पहले हम लोगों के बीच में काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, इस इशू के ऊपर डिस्कशन करें भी या ना करें, लेकिन फिर भी इट्स अ सोशली वेरी रेलिवेंट इशू. सामाजिक तौर पर इसकी बहुत अहमियत है कि आप किस तरीके से किसी महिला का शोषण कर सकते हैं, उसका बलात्कार कर सकते हैं. और बलात्कार का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बार बलात्कार होता है. 3-4 साल तक आपने किसी महिला का बलात्कार किया हो, उसका शोषण किया हो इतने सालों तक, और वो केस अब आ गया है. एंड द जेंटलमैन कंसर्न वाज सेंट टू 2 weeks रिमांड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 14 days, yes, 14 days in 14 days जुडिशियल कस्टडी, और उनका शायद बेल एप्लीकेशन उनकी शायद कल आ रही है. कल आ रही है, yes, yes. और उसी विषय में बात करने के लिए इस वक्त महिला की तरफ से जो वकील हैं, हमारे वारिस पठान साहब के साहबजादे अरबाज पठान साहब. अरबाज पठान साहब, नमस्कार. Namaskar, namaskar, sir. Thank you so much for having me on the show. It's a real pleasure having you on the show. For me, it's a matter of pride. Well, thank you so much. Happy to be my your father's father, friend, and it's retrospective. The generation continues. that your father is a great friend. He has appeared on the show so many times, and now his son. Oh, is appearing. definitely. That's where he started from. That's where he started his debate life and media life from. Right, and I absolutely love it. That his son is also on the same RKB show. So thank you so much for coming. It's an honor to be here, sir. It's an honor. It's an honor. The honor is with us. Wonderful. Could you tell us about? So what is the case about? Could you please explain a little bit? The Because case it's is- because from whatever I've read, it's disgusting. It's very disturbing. Please go ahead. Definitely, this case is really disturbing in nature, as it was a working Mexican DJ who came to India in the year 2012, and in the year 2015, she started DJing. In 2017, she met this very person, Pratik Pandey from Sling Entertainment, and he was working as a manager until in 2019, where he first sexually assaulted her at his residence in Bandra. It was throughout the process of friendship, and in August and September, he actually tagged along with her at various locations of the country, where she used to go for her gigs and her concerts around in every state. And she used to come, like, can you count places like Chandigarh, Calcutta, Bangalore? So he chose to book a single room, and he used to force her at different places and also threatened to destroy her career. She was literally held, her career, her life was on a gunpoint just to earn her bread, and she was scared of the false allegations that might be put on her from his side, as he assured her that he's a powerful person, because he tried to get involved in her personal life, even being a manager. In March 2020, he got married, and for some time he was off until again in July 2022 he started again. He joined her in Tomorrowland, which is in Belgium, where she was playing as a DJ. He barged into her room and he sexually exploited her.
Up amongst all these days, he was literally just behind her personal life. She cannot talk to anybody. She could not do this. She could not do that. And he continuously kept it doing and saying that if you provide me sexual favors, I will award you with more jobs and more gigs. And when she refused to, he started exploiting her, tried to interfere in her life. He started insulting her. He sent messages. He started humiliating her number of times, number of times. And at one point, when she started seeing somebody, he was he turned into a part of it by asking her not to be with that person until December 2022, where he fired her from the job, and he still continued to harass her in the months of Jan, Feb, March, then again started torturing her in June and July until in August 2023 he hopped in a moving rickshaw of this girl. He was stalking her and he tried to sexually assault her in a moving auto rickshaw from Juhu to Bandra in Mumbai. And in that month, she gathered the courage to speak up, to go before the honorable judiciary, to go to the police station, and now the case is under process, and tomorrow is the date of his bail argument. So, Arbaz Sahab, the point is, usually in such cases, what happens is the judiciary takes can take a different kind of view. They always say that, why didn't she complain earlier? Why has it taken her so long to complain? Because from whatever I have read, for the last 4 or 5 years, this was going on. And so, what took her so long? definitely, What is the explanation for that? What took her so long? see, I have an answer to this, which is a very common problem in a society. I'll be honest, when a foreigner woman comes here, many of them, this is a problem which is a dark reality of the posh nightlife and movie life in Bombay, where the foreigner women are exploited but they cannot speak for themselves. This movement had to be started by somebody. And the same person we're talking about, Pratik Pandey from Slick Entertainment, his name has been mentioned during the 2018 Me Too movement as well, on various Facebook articles and many online platforms. And he does the same to women. So it's one person, it took time for that one person to gather courage to come out in public. And if a one woman emerges courageous, the other women are going to follow, and we are going to have way more complaint, and this is going to be solution of a huge problem existing in a society, I feel. But this is She terrible, was isn't it? This is absolutely terrible. If what you're saying is even, Pradeep ji, Well, if what Arbaz Sahab is saying is even, 5% true, it's horrible for our country. What is going on? I mean, women come over here for work, they are DJs, people love them, they are stars in their own right, and they are being exploited like this because they just happen to be foreigners. Therefore, they don't know the system over here, and they are being intimidated and bullied. Pradeep ji. The woman in workplace, Arbalji, is the law has enough teeth to deal with these kind of situations? Because journalists talking to the police authorities, some of the sources said technical rape. ये technical rape है. So how do you know what is actual rape or what is technical rape? Because you have been handling this kind of matter. Number one, that these things have to be taken very, very seriously. You can't just brush it aside. As you said, somebody has to start this. Somebody has to start. The dominant people in the industry or wherever you work in doesn't take advantage of the lesser, weaker sections of the society, whether in the workplace or anywhere. So, what is this technical rape that the sources in the police department talk about, and how are you going to overcome this? So I'm very much alien to the word technical rape, but I've definitely heard about this. It's a native fact about me being a criminal lawyer. A technical rape is something which you can say is made on a false promise or made with some greed or some offer, which is definitely against the consent of the women, whereas a normal rape has been defined about non-consensually brutal against the will of the women without giving any benefit to the women. But at the end of the day, the rape is a rape, might be technical or maybe a normal rape, which isn't normal in a society for sure.
But No. does sorry, Yes, Pradeep ji, yes. but does what Pradeep ji asked, for my own knowledge, is there such a term? Because from whatever I have read, there is no such term. At least in the legal lexicon, there is no such thing as technical It's no rape. such term as technical rape, but this is what people are saying. This is a term which I am alien to, as I mentioned. He used to tell her that if you provide me sexual favors, I will give you jobs. And she used to say no. She has had her days where she stayed alone, where did not get work, is because not providing him sexual favors. But instead of providing sexual favors, he used to force himself on her, and she did not say anything as she was scared of the consequences, where he has sent her threats that he will kill her male friends, he will watch her reputation, he will hurt her reputation, he will tarnish her reputation. And I'll definitely say, for a woman who belongs from a foreign land and she's here to win a bread, she would be definitely worried, concerned about her ongoing reputation and existing lack of uh, lack of confidence in our judicial system. Oh, and no support system, because she obviously would be alone over here. There are no friends, there are no relatives, stuff like that. She's in an alien Yeah, there are country. no friends, there are no relatives. Yes. Her relationships were tarnished because of this very same person, and it's been a time he used to call her male partners and talk about her, badmouth her, used to talk about the sexual activity that he did with her, and this is not a common thing. This is one woman. We have some women coming forward and testifying about the same person soon You during know, the process of the charge sheet. as you said, Advocate Pathan, you said the right thing that he was also named by many people in the Me Too movement in 2018. Now, Yes. this allegations have been around the entire industry about this person. Allegations have that he's an habitual offender of this kind. And there is number one, we need to have certain laws. Now, I'm trying to understand, are there laws in place to take care of these kind of people who hold dominant positions and utilize to use this kind of illegal activities, and which they think will not be exposed, nobody will tell because the person is a weaker position, and he or she will never complain about this. The Me Too movement started. Now, do you think you need another kind of movement like this, so that these kind of pests are brought under control and handled by law, given to law? Would you think another movement is on the card? Another movement? I'll basically say the concept of rape in our country is a pandemic which is never going to come to an end. There's no vaccine available. There's barely any education in society. And I'll be honest about this fact that 90%, 95% of the rapes that happen in India are not reported. And amongst the 5% that are reported, 4% of them are the false allegations. And this is one rape which falls in that 1% of all the rapes in the country. And they don't have faith in justice due to the long procedures, due to the long issues, due to the pull of power around in places, due to lack of employment and education. So it's time we start a movement for the people, for the women who are underprivileged. Example, there are women who have been planted with drugs. They have been sent behind bars. They are under trial. They have nobody outside for their legal aid. They have no relatives in India. They have no friends in India for all this. And the only mistake is we are power bound and we think it's easy to oppress any woman. But now, after this, it is not. Every woman deserves equal rights. She's left her country, come into a land. She's entrusted herself, her immigration in a land, and the law of the land. And the law of the land should not disappoint her or deprive her of the basic justice given, which every woman deserves in the country right now. Pratik Pandey, allegations are that in the same industry where he is in, everybody points allegation that this man is an habitual offender, as we already discussed, a habitual offender. Has more and more women come out, this allegation, when the Me Too movement started, we had people coming from unexpected quarters and raising voices,
coming out boldly and pointing fingers at the people in dominant position who were, doing these kind of activities. Do you think any more people have come up against Pratik Pandey because he's known the industry and allegations have been floating that he's been doing it continuously for quite some time? They have come up with those old articles of women. There's some women who don't want to come up. There are women who are part of his family and they are not ready to come out, but they are ready to share their story and their reference about what the wrongdoings of this person. This person was tried in 2018 in Delhi. He has been arrested and jailed in the year 2022 for negligence regarding a drug offense in his own show. And this person is a habitual offender. Now people are coming out after the registration of the case, after this being a part of the media. There are huge companies, music companies and event companies, that are disowning this person. The person has himself resigned from his own company, and these company people are the same people who are aware about his wrongdoings but would never come out to help. And I hope some people come out and help and boycott this person at the maximum level of courtesy. So what is the argument which has been taken by the other side? I mean, they must have said something. So Is the it, other side is it the usual that she's trying to blackmail and stuff like that? Is that it, or is it something else? She never blackmailed him, first of all. The opposite side is using the argument that the woman is mentally unstable and he was pestering her to take immediate therapy. So my reply to that definitely would be fine. We accept the fact that she is mentally disturbed. We want the government hospitals, government officials to prove it, to make her go through legal psychiatric analysis by the police at a government hospital, by a psychiatric consulted by the government. And even if they think she's not in the right state of mind to do anything, why would they use her for business? And why would they create circumstances in her life in the past 4 years that would make her go crazy? No, she has been performing. Advocate Arbaz Patan, that She has been performing. and it's DJ work is not an easy work. Yeah, आप कुछ बोल रहे थे. Pradeep ji, what I'm saying is that Yes. anybody would be mentally disturbed after Yes. what has happened to her. Of course. For God's sake. Yes, and that cannot be a kind of. The point is, as you said, the right direction is all the contracts and deals that he had. All the big companies should, number one, when the Me Too movement started, disassociate from this man and the company that he belongs to, because that will be also one big punishment. And we hope that, as you said, these companies will disassociate which kind of a habitual offender who has been doing this continuously, not only with here in this case, but many cases. The whispers are all around. There's whispers all around the industry that this man is a pest, he's an habitual offender. So these companies whom award these contracts to him, the first thing is they should withdraw it. And I think they are moving in the right direction, Advocate Arbaz Patanji. They're Are they? definitely moving in the right direction over here, I feel. They are disowning this person. They are disassociating themselves with this person, because this industry is made for entertainment purposes, for celebration purposes, but the dark side of it darkens it and makes things even scarier to celebrate for a normal human being. I go to a concert and I meet this person. I'm there to celebrate, but looking at the darkness, that celebration turns into something worse than a tragedy for me. And such a person must spend his time in jail, and he should be liable to pay for whatever he has done. He has to serve, he has to go through the right trial, he has to go through the judicial system of India. And I wish the justice is served in this case, as we have messages, we have screenshots, all the messages have been retrieved, and this person used to send messages and delete them just so that he could not get caught. There have been messages where he has been explicitly talking about sexual activities regarding her. He has been talking about molestation against her. He has sent her pictures of of his genitals, which is legal and actionable under 67A of the IT Act 2002. And there's this one person who has come out that's our victim. What about the rest of the women? So this movement is a revolution in the history of this country,
where every woman, be it irrespective of their color, caste, or any other foreigner who's facing anything so dark in nature, should come out and get justice. And they deserve justice. And I'm really glad about the Bandra Mumbai police, the Bandra police station, that they took cognizance of the offense. They are still doing the investigation, and there's lots of investigation yet to be done. You know what But we are happened? very proud of you, Arbaz Saab. We are very, So very much, proud sir. of the kind of work you are doing. Fantastic. Because this could be a watershed case, very frankly speaking. Because if this lady gets justice, Yes. people like him will think 10 times before doing anything to a woman. We Because, have, yes. yes. We have been getting phone calls from all over from India regarding the same person, and we are ready to accept their testimony and ask them to cooperate us in the due course of investigation, so that this person who wears a mask of an employer gets unmasked and shown to the world, and so that, because of the same thing, just to create an example for any other person before he even thinks about using a woman's body for his own benefit in the darkest way possible. But Arbaz Saab, is this fellow married? I mean, I was told that he's actually married, is he? He was married in the year 2020. In March 2020, he was married, and for a year and a half after the lockdown, when they got back into business, into working, he pestered her to be in relationship with her, irrespective of even having a wife with him. Oh God. He used to sexually assault her in the year 2022, and he eventually fired her when she refused to give him sexual favors. Pradeep ji. Yeah, you know, I want to know about his company. This Slick Entertainment, he's probably, I believe, a single director company. He's the only director. Now, what happens to the company? Is the police investigating this company? Because it's absolutely essential that he has utilized this woman, used her to get benefits out of her. A lot of transactions that might have come in. So, is the police looking into those angles, the accounts of the company, you know, the office? Has the office been investigated? Are there more, people who are connected to this crime, and you say, who aided Yes. and abetted him to do these kind of activities? His own staff forcing this woman, or talking to her, or luring her, or enticing her. Is there other people involved in this entire operation of doing this? Definitely, there are other people involved, and we have given names to the police station, and they are going to go to the investigation. But I have no idea if I can mention them over here. Those two names are the two friends, and also the people who work with him, as one woman who was working as a DJ who called and threatened and tried to tamper a witness, a prime witness in this case, who's the victim's male friend, and he was called, threatened that the consequences are going to really be bad. After the filing of the complaint, when Pratik Pandey was summoned, the victim's friend received a message from Pratik that if she goes ahead with her decision, it's not going to be good for her. He threatened her. He made serious allegations. He threatened her. She was threatened by other people around who were associated with this very person. So Slick Entertainment definitely hires DJs, artists to perform, but this thing is really common, as I have gotten calls from all over the country, where it's not only our victim in this case, but so many female DJs and artists and musical artists who have gone through this person, and the person has forced them. So many of them have left the country. They have flown to Germany, Spain, where not. They have gone back to their families after his mental torture, because all they were scared of coming forward and speaking up for themselves. So Arbaz Saab, that means effectively what you're really saying is that this man is a serial offender. He's a serial He sex is a offender. habitual offender. He's a habitual sex offender. That's what you're saying. He's a habitual sex offender. He has a case pending against him in 2018 in New Delhi. He has Well, a I case tell you what, against as far him. as the 22. you mentioned that, as far as our viewers are concerned, just to make matters absolutely clear, we tried to contact the lawyer of Mr. Pratik Pandey. He has not received our calls and he has not responded to any of our calls. Mr. Pathan has been kind enough to come over here and explain the case to her. Thank you so much, sir. It's been my pleasure. It is not our job to try and defame anybody, but from whatever is the evidence which is available, no sex offender
can be allowed to remain outside the confines of a jail. Let's be very clear. You can't do that. You cannot do that. This is 21st century India, and India will not stand for it. Arbaz Pathan Sahab, we are really and truly proud of you, and all the very best to you for tomorrow. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And regards to your father. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir. Thank you so much. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Take care. But this is very disturbing, Pradeep. How can you do that? But then we always knew that this kind of industry always had a very, very dark side, which is not usually apparent. But I hope with this case, other people will come out. They should know what really happens over there, because this needs to be stopped. मतलब यहाँ पर, और वो भी यहाँ इस मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, मतलब बिल्कुल, अरे ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं साहब? इनको ये मालूम होना चाहिए किसकी सरकार है यहाँ पे, कौन सी सरकार है. जरा भी भनक पड़ गई और कोर्ट ने जब निर्णय ले लिया, उसके बाद देखिए सरकार क्या काम करती है. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, इफ देयर इज एम्पल प्रूफ अगेंस्ट दिस जेंटलमैन, आई डोंट थिंक ही विल बी अलाउड टू रिमेन फ्री. Sir, and the main thing, जो industries इनसे deal करते हैं, there has to be social boycott. Like you saw it in Hollywood. You saw so many examples in Hollywood where people have been isolated because of the Me Too movement. Yes. Great stars, great people who are doing fantastic, serials, Hollywood movies. They can't even get any work anymore. They don't get any work anymore. Oh, and the rest of them are in jail. Yes, absolutely. So there has to be a social boycott. Correct. Also. Absolutely correct. Right, and at the moment with us from the Bharatiya Janata Party, a very old friend, Mr. Ganesh Khankar. Ganesh Khankar Sahab, namaskar. Sir, namaste. Namaskar, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. Jai Bhavani, Jai Shivaji. And congratulations, sir. आपको मुबारक हो. आपको मुबारक हो. आपका एक एक अनुमान ठीक हुआ. मतलब आप तो अंतर्यामी है सर. आप तो, आपका नाम तो आज के बाद ज्योतिषाचार्य गणेश खानकर है सर. मतलब बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, वो तेलंगाना में आपने कहा 10 सीटें आएंगी, 8 आ गई, लेकिन फिर भी व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस गणेश खानकर साहब. रियली एंड ट्रूली वंडरफुल, फैंटास्टिक. आपने इनफैक्ट यहां पर कहा था, इस शो के दौरान कहा था कि देखिए राजस्थान में क्या होगा, और मध्य प्रदेश में ये बात ठीक है, जब शुरुआत हुई थी तब हम पीछे थे, अब हम बहुत आगे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी हम जीतेंगे, ऐसा आपने यहां पर कहा था. गणेश खानकर जी, अब इसका अनुमान आपको कैसे लगा, उसके बारे में जरा बताएं प्लीज. राजीव जी, वैसे बहुत जल्दी फॉर्मूला नहीं बताया जाता. चलिए सर, कोका कोला की तरह फॉर्मूला ना बताएं. कुछ विश्लेषण तो कर दें. सर, ऐसा है कि आपने कहा जो बिल्कुल सही था. बिल्कुल 6 महीने पहले तक की जो बातें मीडिया में बार बार आ रही थी और जो पिक्चर उस समय बताया जा रहा था, जमीनी हकीकत वो नहीं थी. आपको याद होगा कि जिस दिन चुनाव हो रहे थे और उस दिन अशोक गहलोत जी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और चुनाव के बाद में जो इंटरव्यू हुआ उसमें अशोक गहलोत जी की एक स्टेटमेंट है, यदि धर्म का कार्ड भारतीय जनता पार्टी का चल गया तो मुश्किल है, वरना मेरी सरकार फिर से आ रही है. यह अपने आप में पराजय स्वीकारने जैसा था, लेकिन पराजय को सामने के दरवाजे से हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे. हम पीछे से बात करना चाहते थे जो अशोक गहलोत जी कर रहे थे. मध्य प्रदेश के बारे में जब आपने कहा तो मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने पहले हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस संगठन के काम के लिए मध्य प्रदेश गए थे, और मध्य प्रदेश से आने के बाद जब मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कुछ बातें जब वहां संगठन के बारे में बताई, वहां के माहौल के बारे में बताई, वहां पे मौजूदा विधायकों के बारे में बताई, और जब पार्टी ने निर्णय लेकर कुछ सांसदों को इस चुनाव में उतारा, तब यह पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, पार्टी ने कुछ नया सोचा है, पार्टी कुछ नया करने जा रही है. और स्वाभाविक है
एक एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में आप कितना भी अच्छा काम करेंगे थोड़ी तो होती है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर जाकर पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा और हम इस चुनाव में सक्सेस हो गए। आपने छत्तीसगढ़ की बात की, तो छत्तीसगढ़ के जो रूरल आबादी, जहां पर हम कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल जहां पर परिसर था, वहां पर सरकार की योजनाएं अब जमीनी स्तर पर पहुंचना प्रारंभ हो चुका है। और मैं उसी विश्वास के आधार पर, मेरे भी कुछ पत्रकार मित्र हैं, वे वहां पर गए थे कवरेज के लिए, उन्होंने जो मुझे जमीन की हकीकत बताई कि हम जो देख रहे हैं और जो हमें महसूस हो रहा है, जो मीडिया में आ रहा है उसे छोड़कर जमीन की हकीकत कुछ अलग बयान कर रही है। उन्होंने मुझे 2-3 उदाहरण जब मैंने बताए तो मैंने उनसे 2-3 सवाल किए, और उस सवाल के उन्होंने जब जवाब दिए तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद छत्तीसगढ़ के बारे में जो मीडिया कह रही है वो बात सच नहीं है। शायद मैंने आपसे कहा भी था कि शायद छत्तीसगढ़ में हम पीछे भी रहेंगे तो बहुत कुछ पीछे नहीं रहेंगे, हम लगभग उनके बराबर चल रहे हैं, कुछ गणित जमा तो हमारी सरकार बनेगी। मैंने मीडिया पर ये कहा था, आपने कहा। और मैं आपको बात बता दूं कि 2-3 पत्रकारों ने ये बात कही भी थी, मराठी में भाऊ तोरसेकर जी ने भी ये बात कही थी। हालांकि मैंने उनका जो प्रेडिक्शन है वो मैंने बहुत बाद में सुना, आपके शायद चैनल पर मैं पहले बैठा था, लेकिन उन्होंने भी मुझे याद है ये बात कही थी। और मुझे लगता है कि उनके सोर्सेस क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जो बात थी तो पत्रकारों के थ्रू मुझे उन्होंने जमीन की कुछ बातें बताई थी, तब ध्यान में आया। एक बात मैं आपको बता दूं, तन से जुदा यह जो विषय था जी, वह यानी हमें छोटा लगता होगा, या सनातन धर्म के बारे में जो स्टालिन ने कहा वो विषय हमें छोटा लगता होगा, या कुछ लोगों ने उस पर चुटकी लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसे विषयों पर कांग्रेस की चुप्पी यह कांग्रेस को भारी पड़ी, यह मैं आपको आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। सर देखिए, मैनिफेस्टो हमने भी दिया था, मैनिफेस्टो कांग्रेस ने भी दिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस चुनाव में यह बातें धीरे धीरे अब स्पष्ट कर दी है कि जनता किस पर भरोसा करती है, और वह भरोसा क्यों करे, यह भी एक सवाल है ना सर। सारे लोग तो चुनाव में आश्वासन तो देते हैं, लेकिन जनता किस पे भरोसा करे, अब ये जनता ने तय कर लिया है, और मुझे लगता है ये उसका दिशा दर्शक है। ये राहुल गांधी जी का, खानकर साहब, राहुल गांधी जी अब भी कह रहे हैं कि क्या वी हैव 4 स्टेट में वी गॉट 10 लाख मोर वोट देन द बीजेपी, 40% ऑफ द वोट शेयर हमको मिला है, तो लोग आज भी ट्रस्ट कर रहे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साउथ में टोटल साफ है, नॉर्थ में भले थोड़ा एक्टिव है मगर नॉर्थ में भी हमारा 40% वोट शेयर है। वी आर एज इट इज, बट इन द साउथ बीजेपी हैज बीन वाइप्ड आउट एंड मिस्टर मोदी हैज अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। जो प्रॉमिस वादा किए हैं, राहुल गांधी जी का कहना अभी भी प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड है। खानकर साहब देखिए, ऐसा है कि नंदियार जी, मैं आपको याद दिला दूं कि 2018, उसके पहले 2013 और 2009, देखिए ये सारे चुनावों के रिजल्ट यदि हम देखेंगे तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार परास्त हुई है तो उस समय वोटों का अंतर कितना था और इस समय कितना है। हम राजस्थान में हारे थे सर, वोट का अंतर 1% से ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में गए बार हमें कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों के मामले में हम उनसे 5 सीटें कम पर थे। 109 मिली थी हमें, उन्हें 115 मिली। हम 5 सीट से उनसे पीछे, 5-6 सीट से हम उनसे पीछे चले गए, जबकि वोट हमें उनसे ज्यादा मिले थे। आज जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संशोधन करेंगे तो ये सारे स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वो उनसे ज्यादा मिले हैं। हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस को जो बहुमत मिला है उसके कारण वो जो बात कहते होंगे, वो वहां से स्टेट से जोड़ना चाहते होंगे, तो बात उनकी सही हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, यह चुनाव विधानसभा का था, जैसे ही लोकसभा के लिए हम जाएंगे ये गणित इससे और अधिक अलग है, ये आपको दिखाई देगा। दुरुस्त बात।
लेकिन गणेश खानकर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इस विषय के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ, आपके साथ ही नहीं, बहुत अलग अलग लोगों के साथ भी हुआ कि भाई जिस प्रकार स्टालिन जूनियर साहब ने ये कह दिया कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है, कोविड की तरह है और उसको बाहर करना चाहिए, और साथ में जो कन्हैया लाल का जो मर्डर था, जिस प्रकार उसकी गर्दन काटी गई, उसके ऊपर जो मतलब रिस्पॉन्स आया ही नहीं, मतलब ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स भी नहीं कह सकते, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। तो मेरा ये कहना है कि मतलब उससे तो साफ हो गया ना लोगों की मंशा पे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं आप लोग। और तीसरी चीज, मुझे लगता है एक चीज आप भूल रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने भी आपकी बहुत मदद करी है सर। बिहार के नीतीश कुमार जी ने कोई 8 के 9 उन्होंने नए मुस्लिम हॉलीडेज अनाउंस कर दिए और तकरीबन 4 हिंदू हॉलीडेज को उन्होंने खारिज कर दिया बिहार में। तो वो, एंड दैट वाज जस्ट बिफोर वोटिंग डे, दैट वाज जस्ट बिफोर वोट्स वर टू बी कास्ट। तो मैं आपको और चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज सर, सॉरी, चौथी चीज, सबसे बड़ी चीज, शुरू से आज तक 2012-2013 से आज तक हम लोगों का ये विश्लेषण रहा है, और एक बार नहीं, न जाने कितनी मरतबा हम यहाँ पे बोल चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे उतने लोग ज्यादा उनके साथ जुड़ेंगे, सीधी सादी बात है। इस बार भी वही हुआ है। अब बोलिए सर गणेश खानकर जी, आपका यू नीड टू बी प्रेज्ड अगेन एंड अगेन, and the BJP needs to know what a jewel they've got, what a diamond they've got in Mr. गणेश खानकर जी। बताएं सर। मैं आपको एक बात कह देता हूं राजीव जी, नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव घोषित होंगे, आपको नीतीश कुमार जी के पार्टी का दरबार, या ऐसे दरबार की आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां केवल राजा अकेला बैठा है, सारे के सारे उनके ओहदेदार और प्रजा उनके दरबार से गायब हो चुकी है। ये स्थिति नीतीश कुमार जी की होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है, यानी इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह की राजनीति अब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसका आगे चलकर यही हश्र होने वाला है। और जो आपने बातें कही मोदी साहब के बारे में, तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जितना मैंने करीब से देखा है, जब मैं उनके भाषणों को सुनता हूँ, उनके काम करने के तरीकों को मैं एनालाइज करता हूँ, देखिए मोदी जी कोई भी बात ऐसे नहीं कहते, या कोई भी वो जो प्रोग्राम लाते हैं या कोई भी क्रिया उनकी जो केंद्र सरकार से शुरू होती है, वो ऐसे शुरू नहीं होती। बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा है, आप मोदी जी को गाली देकर मोदी जी को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा बनाने की। दूसरे को छोटा बनाने से हम बड़े नहीं होते ना, हमें अपनी रेखा को बड़ा करना पड़ता है। सर, मैंने ये कई बार कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस मत छोड़ो यात्रा थी। उन्होंने बीच के दिनों में यह यात्रा बनाकर कांग्रेस को शायद मैं कुछ अलग दे सकता हूं, यह जताने की कोशिश की। उसके कारण टूट की कगार पर जो कांग्रेस आई थी, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उनके 23 नेताओं ने जो लेटर लिखे थे वर्किंग स्टाइल के बारे में, उससे उबरने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली थी। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस के ओर से राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली थी। अब ये यात्रा यदि आप कहते हैं तो सक्सेस होती यदि गुजरात के समय उस चुनाव का कांग्रेस को फायदा होता। प्रत्यक्ष रूप से जमीन पर उस समय कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, ये भी आप देख लीजिए। उस समय फिर कुछ लोगों ने हिमाचल से उसको जोड़ने की कोशिश की, तो हिमाचल में कितने बार राहुल गांधी गए, तो राहुल गांधी जी बिल्कुल नदारत थे वहां पर, बिल्कुल। यानी जो यदि वो नेता करके है, खानकर साहब, अयोध्या के बारे में आपने बहुत नॉलेज लेके बैठे। राम मंदिर पुनर्निर्माण बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा, 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 12:22। आपने खुद स्टडी किया है, बोले कि यहां पर एस्ट्रोलॉजिकली बहुत देश को लाभ होगा। इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट वेयर इंडिया इज कंसर्न्ड। इंडिया आगे जाकर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बजाज साहब को इस कार्यक्रम में बोला कि यह भ्रम ऐसा मुहूर्त है कि जबरदस्त, स्वयं प्रभु राम ने इस समय और वक्त डिसाइड किया। ऐसा लगता है
कॉन्स्टलेशन, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? पोस्ट अयोध्या राम मंदिर। आप मुझे अध्यात्म के नाते सवाल पूछ रहे हैं या प्रवक्ता हर के हर नाते? हर पूरे हर चीज में बताइए आप। मैंने आपको ये बात ध्यान में रखी है, जब इसकी चर्चा नहीं हुई थी राजीव जी, आपको याद होगा, हमने इसकी चर्चा 4-6 महीने पहले की थी जी। और तब मैंने आपसे कहा था कि देखिए, एक वायुमंडल होता है, आप इसकी कल्पना करें या न करें, लेकिन कोरोना के समय मैंने इसको अनुभव किया है और मैं जितनी राजनीति या भारतीय मानसिकता को समझता हूं, मैंने वो समझी है। देखिए, ये वही भारत है, ये वही भारत है कि एक समय जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे तो लोग अपने बच्चों के नाम जवाहर के नाम से रखते थे। ये वही भारत है जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो लोग अपने बच्चों के नाम लाल बहादुर के नाम से रखते थे। ये वही भारत है जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के समय बड़ी जीत हासिल की तो लोगों ने उनको सर पर बिठा लिया था। उन्होंने कहा जब मैं गरीबी हटाऊंगी, तो लोगों ने उनको सर पर बिठा लिया था। देखिए, ऐसा मैं उदाहरण ये आपको इसीलिए दे रहा हूं ना, ये भारतीय मन है, ये बड़ा इमोशनल होता है और ये इमोशन से एक बार जब आपसे ये जुड़ जाता है ना सर, तो आप किसी के बारे में कितना भी कुछ भी कहने की कोशिश करें, लोग आपकी बात को सच्चाई नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये वर्षों का इतिहास है सर, वर्षों का इतिहास है कि राम मंदिर के बारे में इस देश के सारे पार्टियों ने अपने अपने स्टैंड बदले। सबसे पहले शाहबानो की केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद में जो राजीव गांधी जी ने अपना डिसीजन चेंज किया, उसके बाद में जो देश में हालात बने, वो 4 साल में जो कांग्रेस पार्टी 418 सीट जीत कर आई थी, वो 4.5-5 साल के बाद में सत्ता से बेदखल हो गई। अब याद कीजिए, यानी 1992 में जब ये ढांचा टूटा, उसके बाद में देश भर में जिस तरह का वातावरण बना, पार्टियों के बात करने के ढंग बदले, यानी हिंदुत्व के बारे में जो बात कहेगा, मानो इस देश में वो सबसे बड़ा अपराधी है, इस तरह की लोग बातें करना प्रारंभ कर दिए थे। अब आप सोचिए, वहां से लेके आज तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कोई जजमेंट आएगा, इसका सर्वे होगा, सही रूप से हम इसको जज कर पाएंगे कि कोई इस पर अपनी बात तक नहीं कह पाएगा, इसको टुकरा नहीं पाएगा, इस प्रमाण को कोई झूठा है कह नहीं पाएगा। देश में एक भी दंगा हुए बगैर राम मंदिर खड़ा हो रहा है। जो हमने कहा था वो हमने करके दिखाया। मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू जी से उदाहरण इसलिए बताया, ये भारतीय मानसिकता है साहब। इस देश में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आएगी, पूरी तरह से पॉजिटिविटी आएगी। हर कोई व्यक्ति इस क्षण को जिंदा रहकर देखना चाहता है साहब। वो जो क्षण होगा ना, वो वर्षों के इतिहास को बदलने वाला क्षण होगा, जब ये पूरे वायुमंडल में इस तरह का अभिमान का क्षण आता है, तो हर व्यक्ति अपने आप को उस अनुभव से जोड़ना चाहता है। और जो व्यक्ति इतने सालों तक, यानी मुझे आज उनके बारे में टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया साहब, मुझे बुरा उस बात का लगता है कि जब श्री राम मंदिर के लिए निधि इकट्ठा करने की बात आई, तो जो लोग वर्षों तक हिंदुत्व के नाम पर हमारे साथ रहे, उनकी क्या भाषा थी, उन्होंने किस तरह के अग्रलेख लिखे, संजय राउत ने क्या क्या भाषा कही, उद्धव ठाकरे जी के क्या स्टेटमेंट आए, सर यार चूकता था। अरे ठीक है, राजनीति में हम एक साथ नहीं है, लेकिन कभी तो आप हमारे साथ थे, कभी तो आप हमारे साथ थे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हमारे पूरे परिवार ने जितना भोगा है, जितना किया है, हमने ये नहीं कहा कि हमारे कारण हुआ, हमने ये कहा कि पूरे समग्र भारत के हिंदू समाज के कारण हुआ है। हमने श्रेय लेने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन गए 2-3 वर्षों में सत्ता पाने की लालच में कुछ लोगों ने जो हम पर टीका टिप्पणी की, उसमें कांग्रेस सही सारे नेता है, उसमें शिवसेना भी है। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगा और आज वो दिन आ रहा है साहब, इन सारे अंधेरे को चीर कर जब प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का जब उद्घाटन होगा,
सूर्य की किरणें उस पर ध्वजा पर पड़ेगी। आगे का इतिहास मुझे बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है सर। जय सिया राम। इसलिए मैंने ये कहा था, जो मैं देख रहा हूं 6 महीने पहले, शायद मैं गलत हो सकता था, लेकिन राजीव जी अनुभव से मैंने कहा था, हालांकि मैं आपके जितना उम्र का नहीं हूं, लेकिन मैं जो देख रहा था, इसलिए मैं तभी से 6 महीने से कह रहा हूं कि पूरा वातावरण बदलेगा। लोग जो कहना चाहे कह दे, पूरे देश में आप नया वातावरण देखेंगे, इतना मैं आत्मविश्वास से आपको बता रहा हूं। आपने भी नेहरू जी के बारे में बोल दिए, नेहरू जी से शुरुआत किए। आज पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने भी नेहरू जी पे आलोचना किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने 2 फॉल्ट किए, जो डिस्कस करे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट और रिऑर्गेनाइजेशन बिल्स के बारे में। 2 गलतियां, सीज फायर 3 दिन और लेट करते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होता, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस में चले जाना। तो जिस प्रकार से आज अमित शाह जी ने छाती ठोक कर बोला कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, तो ये क्या संकेत दे रहे? खानकर साहब। नंबियार जी, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप याद कीजिए, मैंने आप ही के शो में यह कहा था कि भारत के संसद में जो वहां अखंड भारत की नक्शा के प्रतिमा लगी है, सर वो बहुत कुछ बता रही है। यदि खुले आंख से हम देखेंगे तो वो बहुत कुछ हमें बताती है। और नंबियार जी, ये सच्चाई है। ये इतिहास के पन्नों में कभी ना कभी, अब जब इतिहास नए सिरे से लिखे जाएंगे, तो इतिहास को जो दबाया गया है कि जिस तरह से सरदार पटेल जी पंडित नेहरू जी के पीछे पड़े थे कि आप इस विषय को जहां पर लेकर जाना चाहते वहां से कुछ हमें हासिल नहीं होगा। हमारे जो जवान जो इस तरह से काम कर रहे हैं, आप थोड़ा रुकिए, आज नहीं तो कल ये बात साबित होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं तो कल ये बात जरूर साबित होगी। दूसरी बात, इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जो हुआ है उसे हमने स्वीकार किया है, लेकिन आज भी अखंड भारत का सपना लेकर हम जी रहे। नमियार जी, आप और हम रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं राजीव जी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां, ये मैं आज कह रहा हूं, जो नक्शा हम अधूरा देख रहे हैं ना, लोग जिस तरह से कश्मीर में जाते हैं, लोग जिस तरह से पहलगाम जाते हैं, साहब जो पीओके आज पाकिस्तान के हाथ में है, हम हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां पर घूमने के लिए जाएंगी। इतना मैं आपको बता रहा हूं, घूमने के लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि शारदा पीठ एक बार फिर पुनर्जीवित होगी। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वैसे क्यों नहीं होगा सर? एक जगह ऐसी है कि जहां पर 3 देशों की सीमाएं मिलती है जी। हिंदू कुश पर्वत के आगे आएंगे तो खैबर खींड से जाने से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा मिलती है। वहां से एक रास्ता ऊपर रशिया की तरफ भी जाता है जी, जाता सर है। वहां कभी तक मराठों ने अपना झंडा फहराया था जी। इसलिए अटक से कटक तक की बात आती है साहब, सिखों वह ने हमारी भी फहराया। सीमा थी। ये कोई काल्पनिक सीमा नहीं है, सिखों ने भी फहराया सर, महाराजा रंजीत सिंह ने भी फहराया, सिखों ने भी फहराया सर सिख समाज का तो इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे हिंदू समाज के लिए जो सिखों ने त्याग किया है ना सर, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। खानकर साहब, जो आगे जाके अमित शाह जी ने कहा कि एक देश 2 विधान 2 प्रधान नहीं हो सकता। अमित शाह जी ने कहा यह देश में 1950 से जिस प्रकार से 2 संविधान 2 झंडे जिस प्रकार से लहराया था, अमित शाह जी ने कहा यह हमने शुरुआत से विरोध किया था, टोटल विचारों के विरोध। ये मोदी सरकार है जिसने ये परंपरा को तोड़कर एक झंडा, एक विधान, एक प्रधान को पूरे देश को प्रदान किया। हाउ डू यू सी अमित शाह जी को जो छाती ठोक कर स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्लियामेंट में, हाउ डू यू सी दिस? was कांग्रेस टोटली अगेंस्ट दिस एंटायर आर्टिकल 370 करके कैसे आप देखते हो इसको? सर ऐसा है कि हमारी स्थापना उसी बात पर हुई थी जिस समय अखिल भारतीय जनसंघ की दिल्ली के एक कन्याशाला में स्थापना हुई थी। ये हमारे वही मुद्दे थे। कश्मीर के विषय को लेकर कांग्रेस की जो भूमिका थी इस देश के विरोध में थी, हमारे भारत के समूचे संप्रभुता के खिलाफ थी। हमारी स्थापना उसी से हुई है ना सर। ये देश में एक विधान
एक निशान, ये हमारा उस समय का एजेंडा था साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आप उसी पर है, हमारी सरकार आई नहीं आई, आई तो चली भी गई, लेकिन हम उसी बात पे कायम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये गणेश हमारा- कांकर जी, मुझे ये कभी नहीं बदलेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप शायद समझा दें, मेरी तो समझ के बाहर है। जिस तरीके से आज कांग्रेस के सांसदों ने बिहेव किया, भाई देखिए अमित शाह साहब ने कोई नई बात तो नहीं करी है ना, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। अरे ये तो रेजोल्यूशन में है, 1963 के रेजोल्यूशन में है, उसके पहले 1952 में जब सबसे पहली पार्लियामेंट बैठी है इलेक्शन के बाद, उसमें है, और तो और छोड़िए 1994 के यूनानिमस रेजोल्यूशन में है ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें ऑब्जेक्ट करने की क्या बात है? नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस क्या चाह रही है कि आर्टिकल 370 दोबारा री इंपोज किया जाए जम्मू एंड कश्मीर? आपको क्या लगता है? मतलब पहले जो 2 सीट, पहले एक जमाने में बीजेपी का मजाक उड़ाया जाता था कि 1984 में सिर्फ 2 सीटें आई। मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से अपोज करेगी आर्टिकल 370 के रिपील को, हो सकता है कि एक भी सीट ना आए 2024 में। गणेश खानकर साहब। सर दुर्भाग्य है ये, कुछ बातों पे मतभेद हो सकते हैं जी, कुछ बातों पे मतभेद हो भी सकते हैं, राजनीति में हम हैं तो स्वाभाविक है। लेकिन मैंने जो हमेशा से कहा है कि कांग्रेस अपनी दिशा खो चुकी है। कांग्रेस देश की जनता की नब्ज अपने हाथ से पूरी तरह से छोड़ चुकी है। देखिए, राजनीतिक मुद्दों को लेकर लड़ाई करनी पड़ती है, और किसी को गाली देने से, किसी को कमजोर बताने से और किसी को कम देखने से आप बड़े नहीं होते हैं। देखिए, कश्मीर के विषय पर कांग्रेस ने जो इतने साल गलती की, ये वापस उसी गलती को, और मैं आज बता रहा हूं सर, गलती से भी कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली गलती जो करेगी वो धारा 370 को फिर से लाएगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। बहुत सारी चीजों को इस देश ने, पूरा देश सड़क पे आ जाएगा सर, पूरा देश सड़क पे आ जाएगा, इंक्लूडिंग मी। ये भी बता दूं आपको। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या है कांग्रेस को कहां पड़ी है सर? 300 धारा 370 पर कांग्रेस की जो भूमिका है जी, वो हमने संसद में देखी ना। अमित शाह जी को कहना पड़ा कि आप क्या बात कर रहे हो, देश के लिए जान भी देंगे हम, आप क्या बात कर रहे हो? ये वही संसद है। अधीर रंजन चौधरी से लेके कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुनिए सर, कांग्रेस की भूमिका आप देखेंगे तो देश का दुर्भाग्य है। ये मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस का कोई नेता बताए जो संसद में इस चीज पर बहस करे। 1 घंटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कौन भाषण करेगा? कौन देश के सामने कांग्रेस की भूमिका रखेगा? अधीर रंजन चौधरी। वे अपनी बातों को समझ नहीं पाते। प्रधानमंत्री जी ने मौका देने के बाद उन्होंने ऐसी बात कही कि जिस पर शर्म आती है। कौन कहेगा कांग्रेस की भूमिका को लोगों के सामने रखेगा कौन? और उसको कौन स्टैंड होगा? मुझे बताइए ना, कौन से स्टैंड पर वो बात करेंगे? जी, but this is crazy. This is absolutely crazy. Article 370 and 35A have been repealed, and I think that is the greatest achievement of the Modi government. And what Mr. Amit Shah said today is absolutely and very truly clear. लेकिन प्रदीप जी ने जो आपसे पूछा, सवाल को मैं दोहराता हूं सर, मतलब 2024 के पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे और वो हमें दिखेंगे। इज दैट करेक्ट सर? गणेश खानकर साहब। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी है जी, और यह मोदी जी की गारंटी है। यदि उन्होंने किसी बात को ठान लिया तो उस बात को वो पूरा करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। खानकर साहब, एक चीज तो है कि हिंदुत्व, राम मंदिर, राम पुनर्निर्माण, अयोध्या, आप पूरे देश और पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे जो पूरे देश में अच्छा संदेश जा रहा है। दूसरे, ये कश्मीर पे जो, जम्मू एंड कश्मीर पे जो अमेंडमेंट आ रहा है, 2 बिल, वो फिर ऐतिहासिक है। जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद, पूरे देश में आप उस चीज को फैला रहे हो, और पूरे अपने कंसोलिडेशन, एक देश का सेवा भी है और कंसोलिडेशन भी है। और तीसरा, जो जेपी नड्डा साहब ने कहा कि आप जब मोदी जी को गाली देते हो, आलोचना करते हो, बुरे बात करते हो, तो एंटायर ओबीसी समाज को आप गाली दे रहे हो। तो ये एक नया
चीज है जो कंसोलिडेशन के हिसाब से पॉलिटिकली हम लोग देख रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने कल ही इसके बारे में बात की है कि मोदी जी को आप गाली देते हो तो पूरे ओबीसी समाज को गाली देते हो। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, खानकर साहब? देखिए, ऐसा है कि इस देश के इतिहास में नम्बियार जी प्रधानमंत्री पद मानो जैसे गांधी परिवार के लिए ही बना है, यह कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है। एक में प्रधानमंत्री रहे देश के भीतर, एक थे पीवी नरसिंह राव और दूसरे 10 साल के रहे मनमोहन सिंह। अब दोनों के इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो पीवी नरसिंह राव जी जैसे ही प्रधानमंत्री पद से उतरे, कांग्रेस ने उनकी क्या हालत की आप देखते होंगे। और जब भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अलग से एक नया पावर सेंटर बनाया गया जो सलाहकार के रूप में काम कर रहा था, लेकिन कोई भी डिसीजन उनसे लिए बगैर हमारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी नहीं कर पा रहे थे। यानी प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों के सामने फाड़ते हैं। सर, इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? इसका क्या मीनिंग है? ये सत्ता की मस्ती थी और इसीलिए उन्हें नहीं भाते हैं मोदी जी। वो जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं ये नहीं उनको हजम हो रहा। स्वाभाविक है, जो नड्डा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। वो हजम नहीं कर पा रहे कि कोई दूसरा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हो जिसे दुनिया अपना नेता मानने के लिए तैयार हो। ये कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी साहब। इतना जल्दी? सर 10 साल होने को आ रहे हैं और कितनी देर लगेगी डाइजेस्ट होने में? क्या हो गया सर? मतलब क्या है, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन इन द कांग्रेस? मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? सीधी बात है। बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। My point is, my reason for asking this question is because Congress is a very old party. Sir, it started in 1885. 1885 में शुरू हुई है पार्टी सर। मतलब अभी कितने साल हो गए उसको? 138 साल हो गए। It's such an old party. Why? What is the matter with them? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी तो अकल होनी चाहिए ना सर, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है। इतनी तो अकल होगी उनमें कि भारत देश के लिए क्या चीज़ अच्छी है। क्योंकि गणेश खानकर जी, जैसे आपने कहा विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजी के मतभेद हो सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश का प्रश्न है, देश के हित का जहां तक प्रश्न है, वहां पर तो कोई मतभेद नहीं होना चाहिए ना सर। तो आर्टिकल 370 was a temporary article. Everybody knows why it was brought, because there was no other choice at that time. At least that's what we were taught to believe. Now it has been repealed. Now the entire territory of India is inextricably part of India. अब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्यों ले सकता है सर? ये बताएं गणेश खानकर साहब। नहीं, मैंने आपको राजीव जी कहा ना, ये देखिए, ये भारतीय जनसंघ की पहले दिन से जो भूमिका थी वह यदि हम मान ले तो ये सबसे बड़ी पराजय होगी कांग्रेस की, सबसे बड़ा। और उतना बड़ा दिल उनके पास नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब तथ्यों के आधार पर चर्चा होती है, तथ्यों के आधार पर बातचीत होती है, बहस होती है, तो कभी कभी नए तथ्य जब सामने आते हैं राजीव जी, तो उन्हें स्वीकारना पड़ता है जी। और दूसरी बात मैंने ये कहा ना सर, तथ्यों के आधार पर संसद में कौन बहस करेगा कांग्रेस की ओर से? पढ़े लिखे लोग हैं सर वहां पे। जयराम रमेश साहब हैं, अपने क्या नाम है उनका, शशि थरूर साहब हैं, ऐसे सब लोग हैं वहां पे। मतलब नहीं बात कर जयराम जी तो बहुत बोलते हैं। मतलब देख, मनीष तिवारी साहब हैं, आज भी बोले हो मनीष तिवारी साहब, कोई टेक्निकल पॉइंट रेस किया। राजीव जी, लेकिन मुझे बताइए, ये सारे लोग क्या अपनी भूमिका रख पाएंगे जब इनका नेतृत्व ही दिशाहीन हो चुका है? ये कौन सी भूमिका रखेंगे, मुझे बताइए ना सर, कौन सी भूमिका रखेंगे? जिस धारा 370 के कारण इतने दिन, इतने वर्षों तक कश्मीर में हम सुधार नहीं ला पाए, कश्मीर को देश से नहीं जोड़ पाए, हम उसी को तो हटाने के लिए कह रहे हैं। हम कोई और तो नहीं बात कर रहे हैं ना सर। लेकिन हाँ ठीक है, ये उस समय हमने किया, अब इसके हम साथ में हैं,
ये कहने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है सर. इट्स नॉट पॉसिबल. सर 30 साल के बाद सिनेमा घर पहली बार यानी मल्टीप्लेक्स कश्मीर में खुले हैं सर. पहली बार हुआ है 30 साल के बाद. और देर रेस्टोरेंट्स खुले हैं सर. 1:30 बजे तक लोग अपने घर के बाहर रहते हैं, रेस्टोरेंट्स में रहते हैं, मॉल्स में रहते हैं. ऐसा लगता है मुंबई है, श्रीनगर नहीं है. और तो और छोड़िए, मतलब क्या है, अब वो दिख नहीं रहा क्या लोगों को. खैर छोड़िए, उनके आगे जो उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं सर. तो गणेश खानकर साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि 2024 का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है. पहले हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा के बैठे थे कि 350 सीटें आ गई बीजेपी की. अब बोलो अब कितनी आएंगी गणेश खानकर साहब 2024 में. साहब ये जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आएगी सर जी, हम उससे आगे और बढ़ते जाएंगे. क्या बात. तो मतलब 419 का जो आंकड़ा है वो आप ब्रेक करेंगे. राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जो कांग्रेस को सीटें मिली थी, लगता है बीजेपी शायद उनसे ज्यादा आगे जाए. कहने का मतलब ये हुआ. देखिए, देश का मतदाता ये आखिर में राजा होता है, वो जो तय करे वो तय करे. जो तय करे सो तय करे. बट वी ओ यू कॉफी. आपको यहाँ पर आकर के चाय या कॉफी जरूर पीनी है हमारे साथ. आप ऑफिस आइए. वी वुड लव टू ऑनर यू. यू वर एब्सोल्युटली राइट. Let me say it again. Mr. Ganesh Khankar was the only person who predicted this election result exactly the way it has happened. And for that, congratulations to you, sir. Really and truly wonderful. I hope the BJP realizes. मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि कैसा हीरा उनके पास है. उस हीरे का नाम है गणेश खानकर. मैं उम्मीद करता हूँ. थैंक यू सर. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय श्री राम. जय श्री राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय श्री राम. Thank you, sir. Thank you very much. Great pleasure as always talking to you, sir. Wonderful. And that was nice. That was really, really nice. And Ganesh Khankar actually predicted it right over here. Ganesh Khankar साहब ने यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से कहा यही होने वाला है. Exactly, sir. Exactly. And you said that he is better astrologer. Yes. He's more a good astrologer than all astrologers. Yes. सर राजस्थान में इन्होंने कहा था कांटे की टक्कर है. Exactly. और एक्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स में बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन 39.3%. बाय द वे, नासिर वाज राइट यस्टरडे. नासिर हुसैन साहब वाज राइट. 39.5% या 39.3% कांग्रेस का वोट शेयर है और 40% बीजेपी का है. सिर्फ 1% का फर्क है सर. ओनली 1% इन राजस्थान. बट लुक एट द नंबर ऑफ सीट्स. अरे बाप रे, जबरदस्त. और मध्य प्रदेश में 8% का फर्क है और छत्तीसगढ़ में 4% का. सो मे बी द कांग्रेस स्टिल हैज अ चांस. वन नेवर नोस if they work together. But if they insist on putting back Article 370, I think Congress will be wiped out. That is my opinion. कांग्रेस को एक सीट भी नहीं आएगी साहब. अगर कांग्रेस ये कहती है कि आर्टिकल 370 जो रिपील हुआ है उसको वापस लाया जाए, तो जयराम जी की सर हर वो क्या है, राम नाम सत्य है आपका. फिर उसके बाद सर अभी भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. वेयर आर द चांसेस? Yes. हिंदुत्व अयोध्या मूवमेंट एक जबरदस्त एक इम्पैक्ट होगा पूरे देश और पूरी दुनिया में. नंबर 2, जिस प्रकार से श्रीनगर का JNK बिल्स लेके आ रहे, 2 नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रवाद को एकदम परफेक्टली कंपाउंड कर रहा है. और तीसरा, जब मोदी साहब कह रहे हैं कि आई एम OBC प्राइम मिनिस्टर. यस. एंड आप OBC को गाली देते, अब प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी को गाली देते हो, तो यू abusing the whole community, the OBC community. I mean, there's no, जो fort में there's no place left open for anybody to bifurcate and get into the fort. और सबसे बड़ी बात, कोई जगह छोड़ा नहीं. और इसमें आपने जो सबसे बड़ी बात कही है वो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान पूजा जो होने वाली है 22 जनवरी 12:22 पे. कब? 2024 में. उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके बाद क्या है आपके पास? देखते हैं. चलिए. But all the best to everybody. We would like a good competition, good contest between everybody. But we respect the fact that the BJP actually was able to repeal Article 370 and 35A way back in 2019, and congratulations to them. This is something which no other government was able to do. They have done it. They've actually been able to build the Ram Janmabhoomi temple
where no other government was able to do it. They have done it, and that I think is a great enough achievement. आगे POK के बारे में क्या करते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आगे देखने को मिलेगा. After all, strategies are not discussed in television studios. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. We do have some responses which have come. Meanwhile, do subscribe to the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें अगर आप असल में लाइक करते हैं तो. बट डू रिस्पॉन्ड, ज़रूर कमेंट अपने ज़रूर भेजें. I would love to read out your comments. I love reading out your comments. Right here, and so does Pradeep ji. Can we have some responses? ज़रा देखें क्या comments आए सर. This is yes, when you have young lady with 12 lakh people following in Insta, it is. Who is this? Malik's. I have no idea which is the young lady is he talking about. Mr. Katke is not a lady. 1.2 million people, मतलब 12 लाख लोग, 1.2 million. Who's the young lady? Anyway, चलिए आगे बढ़िए. I think may have sent it to somebody else. Ram Mandir. ये तो हम लोगों का डिस्कशन था सर. Yes, yes. Gururaj 800 बोलते हैं good discussion sir. You big flaw of Congress which dented their chances. I think that's what he means. I agree with you. Thank you very much for agreeing with us. So nice of you. After a long time, somebody who agrees with us. और ये हैं राकेश शेट्टी साहब. This Shetty is an insult to the Pant community. Shame on you. Vincent George 9596. Rakesh Shetty साहब is a very good friend and he is trying his best for the Congress. और ये रणदीप हुडा साहब की अभी उनका जो विवाह हुआ है लिन लेशराम साहब के साथ, लिन लेशराम जी के साथ मणिपुर में. ब्यूटिफुल कपल, गॉड ब्लेस. Tenzin Choizom 7070. She's a Mitai, yes, as far as I know, and Mitai is a Krishna worshipper, and that was really and truly wonderful. Again, Sandeep Katke, ये किसी ने सिर्फ एक laughing emoticon भेजा है. आदरणीय सम्मानीय संदीप काटके जी के ज्ञानेश अत्रे के विचारों का. ध्यानेश अत्रे जी. Is that it? कुछ और है? Okay. क्या है? Rocking Bosky. Congress logic: loses 2 states where they were ruling, loses in 1 state when they should have won, then thinks the total vote of all 4 states where they have contested and say they got more votes. All right. All right. What do you expect? Oh, God. No political party is going to turn around and say, hey, listen, we lost. We were knocked out. Nobody's going to say that, right? They've got to have some logic for their supporters. What do you think is going to happen? You get a lot of understanding even from these comments that come. Yes, everybody, as I said, different thoughts. There is nobody who is wiser than the Indian voter or the Indian citizen. आप अपने comments भेजते रहें. One would love to read them out right over here. And from both Pradeep ji and myself, आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. महादेव. नमस्कार.